Anji, good morning, guys. Good morning, sir. This is the reward you get from the institute. This is a silver idol of Lord Ganesha uh, to always accompany you with our blessings throughout your life. Ganesh ji, तो you will keep जिसके भी जो इष्ट देव है, accordingly we get. And second thing is the check for refund of the fee. Show you because पिछली वीडियो में online cannot have the jazz of seeing the check or the refund. So these will be presented to you, Gaurav. Just he's coming downstairs. And about Gaurav, he scored 300 marks out of 500 in Anthro. And I would like you guys to talk about the value addition part specifically that he has done. Okay. So perhaps he was the one who made the most out of the recent updates that we shared last year from the Anthropology World Conference, as well as the updates in the content that we made. Most likely, he is the one who has made the most out of it. I think he'll be able to light the way for you to reach there. Now, time to get pumped up. He'll be here in a minute. Okay. ऑनलाइन बच्चों का गुड मॉर्निंग. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. बैठिए सर. सो बच्चा लोग, गौरव उपल स्कोर 300 एंड नॉट ओनली दैट गॉट IPS. तो रूल क्या है? टिल दिस टाइम वी हैड a rule that anybody who gets into IAS, IPS in general category will be honored. लेकिन इस बार से हम एक चीज और जोड़ रहे हैं. एनीबडी हु स्कोर्स 300 और प्लस, चाहे कोई भी नीचे भी रैंक होगा, तो उसको भी इसी तरह ऑनर करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले गौरव को ये 105th year old coin is there. And then every time we had my friend Shiva, पर क्योंकि ही इज अपीयरिंग अगेन, तो हमने कहा कि गणपति जो है गुड फॉर द बिगिनिंग, इसलिए. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट, मनी मेक्स द मेयर गो. ठीक है. अगली बार IAS बनेगा तो चेक नहीं लौटाया जाएगा, फीस एक बार हो जाएगा. ठीक है. अच्छी बात क्या है बड़ी. Gaurav belongs to my state, but we interacted in English and Hindi. But he knows a lot of Punjabi culture. I interacted just now. Good thing is, or bad thing is, whatever it is, जितने भी हमारे टॉपर्स हैं इस बार के, most of them जो है वो 19 और 20 के. So that gives you a lesson कि हार्वर्ड आना नहीं है. ठीक है. Things take time. I've been telling you every time that unless you are ready with the mains, don't think about prelims. And their experiences shows. So Gaurav will share his experiences with you, and you can extract maximum from him. Online वाले बच्चे भी जो हैं, जो कुछ आप जानना चाहें, just squeeze him, because again he may be coming next year once he is in top 50. ठीक है ना. अपनी दुआएं तो साथ में आई. Thank you. ठीक है ना. अब आप जानिए, गौरव जाने. आई एम सिटिंग विद यू डाउनस्टेयर्स. Shall I start? So as sir said, good things take time. So that is a hard reality in this particular exam. So be patient. Just give your best every time you appear in this exam, be it any stage. And this is one of the best optional, I would say, and very scoring optional. So I'll be mainly dealing with this option strategy in this talk. And if you have any GS queries as well, we can discuss it towards the end. So first of all, if we go by the syllabus, so first and foremost thing for any mains subject based GS or be it optional, it is syllabus
as well as the previous year question. So these two are the biggest guide, friend, philosopher, and guide for you in this exam. So syllabus should be on your tips, and in optional in particular, every topic of the syllabus has to be covered. Because I have seen some people say कि ये choice में आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, but don't go for this. Every topic of the syllabus should be covered thoroughly. PYQ के हिसाब से उसको पूरा उसके अंदर डिटेल्स में जो भी टॉपिक्स आ चुके हैं उसको कवर कीजिए, उसके नोट्स होने चाहिए, उसकी मल्टीपल रिविजन्स होनी चाहिए, and then write answers, and then you're good to go. So I'll be beginning with the sources and the syllabus first. So 5 parts में divide कर सकते हैं, वैसे इसको आर्कियोलॉजी को अगर अलग कर दें थोड़ा सा in particular. So socio cultural, physical, archaeology, then Indian anthropology, and then tribal anthropology. So firstly sir भी socio से ही start करते हैं, and so we'll start with the socio-cultural. So socio-cultural के लिए the sources I referred to was Ember and Ember and Wetzer's book, and these two were the primary sources. And उसके ऊपर with these sources and with the way sir tells you कि इसको इस तरीके से जो questions देते हैं सर PYQs के हिसाब से, syllabus के हिसाब से, you make notes on these questions, and then ये तो हो गया basic part, and then comes the value addition thing that will come with the things that sir keeps on sharing in the groups. तो इसके लिए हमारे notes बहुत ज़्यादा succinct होने चाहिए, बहुत एक पेज पे, एक टॉपिक या 2 पेज पे हमारे notes होने चाहिए, उसमें leave a space and उसमें keep on value adding. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टडी आ गई, जैसे आई रिमेम्बर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर एक स्टडी थी कि जैसे हम पढ़ते हैं कि मेन वर हंटर गैदरर्स, बट देयर वाज अ स्टडी पोस्टेड बाय सर इन ग्रुप कि women वर इक्वली प्लेइंग द रोल इन हंटिंग एज वेल. सो उस तरीके की चीजें, जैसे क्वेश्चन आई रिमेम्बर कि एक टेस्ट सीरीज में था सर की, उस तरीके से कि फीमेल्स का रोल इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज. तो उस तरीके से यूपीएससी ने भी शायद प्रीवियस में पूछा हुआ है, तो उस तरीके से दोबारा भी आ सकता है. तो दैट इज द वे यू हैव टू कोरिलेट विद दीज थिंग्स, एंड दैट इज द वे यू हैव टू ऐड ऑल दीज थिंग्स इन द नोट्स, कि उसको फिर हम बार बार रिवाइज करेंगे एंड वो कभी भी रिपीट हो सकता है, उस ऑन द लाइंस ऑफ दैट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो उस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए. सो सोशियो कल्चरल में हमारा मैरिज आ गया, फैमिली आ गया, एंड किनशिप, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन. सो एक तो ये पार्ट हो गया, एंड देन कम्स द मेजर पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल, थ्योरीज. सो थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट and they are the core of this subject. If you want to, like, that is a window, I would say, and as well as the whole world to anthropology. So that is the lens. So theories are very important. Theories के लिए I refer to Ember and Ember, and as well as the Alabama University website. And the book I referred was another theories particular book was Upadhyay and Gaya Pandey. सो जैसे उसमें कुछ थ्योरीज नहीं है, उपाध्याय पांडे में सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव नहीं है. सो फॉर दोज थ्योरीज गूगल वीडियोस सर ने भी लिंक शेयर करते हैं ग्रुप्स पे, एंड एलाबामा यूनिवर्सिटी वेबसाइट होगी. उस तरीके से जस्ट वी हैव टू गो बाय द थ्योरीज एज वेल एज टॉपर्स हैव शेयर्ड देयर नोट्स एज वेल. नारायण अमित सर के बहुत अच्छे नोट्स हैं थ्योरीज के ऊपर, सो यू कैन रेफर दैट. सो इस तरीके से we have to go through each and every topic of the syllabus. अब लास्ट ईयर वो जो एक क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल आया था कि लुइस मॉर्गन का क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, वो भी थ्योरीज में से था. वो दैट इज गिवन इन उपाध्याय एंड गया पांडे. तो उस तरीके से अब वी कैन नॉट कंप्लीट बुक, तो हम एज इट इज नहीं कर सकते उसको. हम जब नोट्स में उतारेंगे वी हैव टू फ्रेम इट टॉपिक वाइज, एंड वो टॉपिक्स कहाँ से आएंगे हमारे. अगेन मैं बहुत रिपीटेडली ये सब चीजें कह रहा हूँ बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट
actually give the result ki PYQs, syllabus. So these are very important. So उस तरीके से जब हम बुक्स पढ़ेंगे, जब हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमारे सिलेबस होगा, पीवाईक्यूज होंगे, सो देन वी विल बी एबल टू मेक गुड नोट्स ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, इसको कहेंगे, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना पाएंगे. एंड देन फिर सोशल कल्चर में हमारा और एक टॉपिक आ जाता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. सो फॉर दैट इट वाज अगेन एम्बर एंड ईपीजी पाठशाला वेबसाइट से थोड़ा सा इसमें है, बिकॉज आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर 2022 में मैंने ये टॉपिक छोड़ के गया था, एंड उसमें भी शायद कुछ क्वेश्चन आया था. एंड वो फिर क्योंकि एक क्वेश्चन याद होता है, देन वो पूरा 3 क्वेश्चन का सेट यू हैव टू एलिमिनेट कि हाँ ये तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा. सो इफ यू हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, देन यू हैव ऑप्शंस कि जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कम आता है, तो आप वो वाला क्वेश्चन मतलब वो भी कर सकते हो, अदरवाइज बाकी छोड़ सकते हो. तो दिस टाइम आई कवर्ड दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड एम्बर की सर ने भी एक पीडीएफ शेयर करी थी, चैप्टर 7 शायद था उसमें, या फिर 14, आई गेस 14 था, एंड उसमें से नोट्स बनाए, एंड देन ईपीजी पाठशाला. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि वो ईपीजी पाठशाला में ग्लोटोक्रोनोलॉजी के बारे में लिखा हुआ था. सो आई वाज एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन बिकॉज मैंने वो सोर्स रेफर किया था. एंड देन कम्स द रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, एंड इसके लिए भी सेम सर के नोट्स इसमें काफी वो जो सर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रियली गुड. एंड उसमें फिर फर्दर हम थोड़ी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, ईपीजी पाठशाला में से कर सकते हैं. एंड देन इसमें डिक्शनरी जो एक सर रेफर करते हैं, उसमें से भी फील्ड वर्क की फॉर एग्जांपल डेफिनेशन मैंने वहां से उठाई थी, एच पाउडर मेकर की थी डेफिनेशन फील्ड वर्क के ऊपर, जो मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तब यूज करी थी. इस साल तो इस पे क्वेश्चन नहीं आया. तो इस तरीके से सो व्हाट अगर मैं कहूं तो क्या एक बेसिक आंसर के लिए चाहिए. सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन होगा, एंड इसमें डीप डाइव करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी क्वेश्चन जिसमें हम मोस्टली हम जीएस में हम दिमाग में रखते हैं बट ऑप्शन में भूल जाते हैं, दैट इज मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ऑप्शन में भी उतना ही जरूरी है डिमांड मीट करना जितना कि जीएस में है. ऑप्शन में भी थिंक कि हम स्कॉलर्स कोड कर देंगे, हम उस टॉपिक के बारे में पता है, हम उसके बारे में लिखाएंगे, सो विल गेट मार्क्स. दिस इज नॉट द थिंग. ऑप्शन में भी डिमांड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको उसकी डिमांड मीट करना, दैट इज द मेन थिंग. सो इसमें भी उतना ही जरूरी है, एंड इसमें भी तभी मार्क्स मिलते हैं जब हम क्वेश्चन की डिमांड को मीट करते हैं उस तरीके से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. So introduction में what I used to do this time, what I did was कि mostly I kept a definition handy. सर के नोट से मैं अगर थी, अदरवाइज जो अदर सोर्सेज थे, कोई एम्बर हो गया, डिक्शनरी हो गई, या ऑनलाइन हो गया, ईपीजी पाठशाला हो गया, तो उसमें से आई प्रेफर्ड कि जिसमें भी कोई डेफिनेशन हो मेरी एक स्कॉलर की डेफिनेशन हो, मतलब उसमें मैं कोड कर सकूं. और इसमें अभी लग रहा होगा कि स्कॉलर की बहुत डिफिकल्ट है इतने सारे याद करने, बट ट्रस्ट में जब हम 2 साल सेम चीज 15 से 20 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे टिप्स पे होती है. मतलब नींद में भी हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे अभी तक मुझे याद है इंटरव्यू से पहले का पढ़ा हुआ, मैंने काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए, बट स्टिल आई रिमेम्बर मैनी ऑफ द स्कॉलर्स बिकॉज वो इतनी रिवीजन करी होती है कि वो चीज याद रहती है. इनिशियली बिल्कुल लगेगा, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन तब तक लगेगी नहीं बहुत डिफिकल्ट है याद करना, बट वो धीरे धीरे सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा. मतलब ये हमारे पावर काफी है, स्पेस बहुत है दिमाग की, वो हम पढ़ते ही हैं कितने सीसी है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो दैट इज सफिशिएंट, एंड उसमें वी कैन सफिशिएंटली स्टोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो बट द की इज मल्टीपल रिविजन्स. अगर आप कहो कि एक रिवीजन में आपको हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, सो दैट विल नॉट बी द केस. सो यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स.
ठीक है। एंड देन कम्स जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया उस क्वेश्चन को कि फॉर एग्जांपल जैसे फील्ड वर्क के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन था, तो फील्ड वर्क को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एंड देन उसके ऊपर जो नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, सो वी पुट द हेडिंग कि जो भी उसकी हेडिंग है एंड उसको जैसे जीएस में करते हैं, आई यूज टू डू इट इन ऑप्शन एज वेल, उसको बॉक्स किया हेडिंग बना के एंड देन जो भी उसके पॉइंट्स हैं जो भी हमारे नोट्स में होंगे, जस्ट राइट दोज पॉइंट्स एंड देन उसका जो अदर वो है, इसमें भी पॉइंट्स में ट्राई टू राइट एज मेनी एग्जांपल्स, नॉट इन पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन बट जिस क्वेश्चन में एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जिस क्वेश्चन में हमारे पास स्कॉलर्स हैं, स्कॉलरली केस स्टडीज हैं, उसको भी हम एज अ एग्जांपल वी कैन कोट। मतलब स्पेशल पेपर 1 में स्पेशली कुछ केस स्टडी बना के ऐसा लिखने की बजाय वी कैन ऑलवेज गो फॉर एग्जांपल, दैट इज मोर रिवॉर्डिंग आई वुड से। तो राइट जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एज सर से कि इंटू 20 कर दो, 300 वर्ड्स होने चाहिए, बट वो 250 में भी हम कर, मतलब 250 to 300 वर्ड्स में लिख सकते हैं। बेसिकली वर्ड्स मीट करना इज नॉट आवर गोल, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करना इज आवर गोल। सो वो 2 पेज में भी कंप्लीट हो जाता है कई बार क्वेश्चन, कई बार 3 पेज भी कम पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट के ज्यादा, बट वी हैव टू सी द टाइम एज वेल। तो जस्ट राइट दोस पॉइंट्स, राइट एग्जांपल्स, जो भी हमारी वैल्यूएशन हमने करी हुई है नोट्स में वो तभी इसमें निकलेंगी एग्जाम में अगर हमारे नोट्स में होंगी एंड अगर हमने रिवाइज करी होंगी। इफ यू विड से कि सर ने ग्रुप पे डाली हुई है, ये है, मैंने एक बार पढ़ लिया एंड मैं उसको एग्जाम में कोट कर दूंगा, ट्रस्ट मी वो कभी भी नहीं होगा एग्जाम में, इट विल नेवर बी रेप्लिकेटेड इन एग्जाम। वो तभी होगा अगर उसमें से आप सिलेक्टिवली एक लाइन उसकी बना के नोट्स में डालोगे अपने एंड उसको बार बार रिवाइज करोगे, उसको टेस्ट सीरीज में यूज करोगे, जो भी अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो या जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, यूज इट इन दैट एंड देन इट विल गेट रेप्लिकेटेड इन एग्जाम। बिकॉज वो 3 घंटे कितना टाइम क्रंच होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट कि उसमें से भी फिर 20 मार्कर 15 मार्कर्स एंड उसमें फिर आप सोचने बैठोगे तो दैट विल नॉट गिव यू, मतलब डिविडेंड वहां तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, तो एक्यूरेट आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा ही नहीं। सो एज आई सेड की पॉइंट्स जो हमारे आ गए 5 to 6 पॉइंट, 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आई रिमेम्बर कि डीएनए वाला जो क्वेश्चन आया था इस बार, तो उसमें वो आई हैड इट इन माय नोट्स एज वेल, उसमें मेरे 7-8 पॉइंट्स रेडी थे विद एग्जांपल्स, मतलब वो नोट्स में, क्योंकि उसको मैंने अच्छे से तैयार किया था, सीधा क्वेश्चन था, उसमें 7-8-9 पॉइंट भी लिख दिए थे मैंने शायद। एंड देन अब हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, बट उस क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ा सा वी कुड राइट द फ्लिप साइड ऑल्सो, सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑल्सो, तो वी कैन राइट 2-3 पॉइंट्स फॉर चैलेंजेस एज वेल एंड देन वी कैन कंक्लूड। सो इस तरीके से आई गेस कि मेरा 2.5 पेज में वो खत्म हो गया था वो वाला क्वेश्चन। तो जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो भी लिख दिया कि हाँ इसके फायदे तो हैं, ये सारे मैंने 9-10 पॉइंट लिख दिए हैं, बट इसके थोड़े से चैलेंजेस भी हैं एंड देन, और इसमें भी जो पॉइंट्स लिखे हैं उनमें सब में एग्जांपल्स कोट करी हैं, डीएनए वगैरह की जो मतलब एप्लीकेशंस हैं कि किस किस में यूज होता है, उस तरीके से जो एग्जांपल्स ऐड कर रखी हैं वो सारी साथ में लिखी। सो उसमें दैट फेच्ड अ लॉट ऑफ डिविडेंड। सो फॉरवर्डिंग टू दिस, जैसे हम बात करें तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें सोशो कल्चरल के बाद, सो फॉर फिजिकल one book I referred was Apinath, and then again Ember and Ember, and EPG पाठशाला इसमें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, एंड इसमें भी कुछ क्वेश्चंस के लिए आई रिमेम्बर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो टॉपिक है या उस तरीके से दैट इज अवेलेबल, तो उसमें से आई यूज टू पिकअप, एंड इग्नूज PDFs आर ऑल्सो सोर्स विच यू कैन रेफर। अब इसमें मैं इतने सारे जो सोर्सेज बता रहा हूँ ये नहीं है कि आपको सब, मतलब यू विल रीड देम अगेन एंड अगेन, जस्ट गो थ्रू देम, पिक अप द थिंग्स विच यू कैन ऐड इन योर नोट्स एंड देन सफिशिएंटली, मतलब 1 से 2 पेज जब आपको बनाने हैं उसमें अगर आपके किसी और सोर्स से बन गए हैं तो दैट इज सफिशिएंट, बट दीज आर द ऑप्शंस आई एम टेलिंग यू कि दीज आर द थिंग्स यू कैन रेफर टू। एंड किसी को कई बार लगता है कुछ स्ट्राइक कर जाता है पढ़ते हो, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी आर स्टडिंग वी आर इन डिफरेंट जोन। सो आई रिमेम्बर कि कभी मैग्नू
कि कुछ पीडीएफ खोलता था, कभी तो मुझे एकदम कुछ समझ नहीं आता था उसमें से, एंड कभी लगता था कि यही मतलब रामबाण इलाज है एंथ्रोपोलॉजी का, सब कुछ इसको कर लिया तो हो जाएगा। तो वो जोन की बात होती है। तो इतने सारे सोर्सेज, मतलब ये 2-3 डिफरेंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको जब भी जिस जोन में बैठे हो आप रेफर करो तो आप उसमें से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सको जो आपको नोट्स के लिए चाहिए, जो आंसर राइटिंग के लिए चाहिए। सो यू हैव टू पिक देम सिलेक्टिवली, नोट्स बनाओ एंड देन रिवाइज देम। सो फिजिकल के लिए जेनेटिक्स सोर्सेज बताए हैं सर के, नोट्स भी इसमें काफी हेल्पफुल रहते हैं। सो बीट सिंथेटिक थ्योरी वाला जो वो है प्रिंट आउट है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, उसको उसमें से मैंने नोट्स बना लिए थे। एंड जेनेटिक्स वाला भी हेल्पफुल रहता है, काफी हेल्पफुल रहता है। एग्जाम्पल्स भी हैं उसमें, वो जो बॉक्स में दिए होते हैं, तो उसमें से यू कैन एक्सट्रैक्ट एंड पुट देम इन नोट्स। बट अगर आप इतने बल्कि यहाँ पर ये कहोगे कि इसको मैं बार बार पढ़ता रहूंगा, तो दैट विल नॉट हैपन। सो यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम एज पर द सिलेबस, एज पर द PYQs, एंड देन रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। मैं पूरे इसमें बोलता रहूंगा ये सब चीजें, क्योंकि यही दैट इज द मंत्र आई फील फॉर दिस एग्जाम, बी इट GS और बी इट ऑप्शनल। सो 1.4 टॉपिक जैसे मैं कहूँ तो वही सेम सर के नोट्स, एम्बर EPG एंड IGNOU। सो दीज आर द थिंग्स you can refer. And then primates 1.5 टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सो इसमें IGNOU का काफी अच्छा मटेरियल आई फील कि जो प्राइमेट बिहेवियर के ऊपर हो गया, उसमें काफी डिटेल में दिया है, कुछ EPG पाठशाला एंड IGNOU। सो दीज 2 सोर्सेज फॉर 1.5 टॉपिक यू कैन रेफर फॉर प्राइमेट्स। मतलब बेसिक तो सर बताएंगे, बट ये जो प्राइमेट बिहेवियर उसमें भी शायद सर ने अब ऐड कर दिया होगा, बट अगर अलग से एग्जांपल्स के साथ या कुछ केस स्टडीज वहां से भी आप उठा सकते हो। एंड देन 1.6 तो फॉसिल्स, वो सर अच्छे से पहले कराएंगे आपको सारा एरा वगैरह, वो मुझे आज तक मैंने सुना भी नहीं था वो सर की वीडियोस देख के ही समझ पहली बार सुने थे वो सारे वर्ड्स, बट वो काफी हेल्पफुल रहता है, उससे काफी रिमेम्बर रहता, वो चीज याद रहती है। सो फॉसिल्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मटेरियल, प्रिंट आउट मटेरियल, एंड उसके ऊपर जो सर बहुत सारे आर्टिकल्स शेयर करते रहते हैं, बिकॉज ये ऐसा फील्ड है 1.6 टॉपिक कि जिसमें बहुत सारी रिसर्च इज हैपनिंग, बिकॉज अभी वो पैलियोजेनेटिक्स शुरू हो गया है एंड उसमें सारी जेनेटिकल तरीके से मतलब वो सब रिसर्च हो रही है ऑन द फॉसिल्स, तो उससे काफ़ी स्टडीज आ रही हैं एंड उसमें सर बहुत सारे लिंक्स डालते रहते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आते रहते हैं। सो उसमें से सिलेक्टिवली पिक देम एंड कीप एडिंग देम इन योर नोट्स, क्योंकि उसमें जब हम करंट का कुछ एक भी स्कॉलर डाल देंगे एकदम 2023 ब्रैकेट में ईयर डाल देंगे, 2024 ईयर डाल देंगे, सो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो दैट फेचेज अ लॉट ऑफ मार्क्स, मतलब वो आपको एकदम डिफरेंशिएट कर देता है अदर कॉपीज से। एंड देन कमिंग टू द अदर टॉपिक्स ऑफ फिजिकल, इफ आई टॉक जेनेटिक्स हो गया, मेथड्स फॉर स्टडी इसमें भी है सर के नोट्स में सारे, उसमें से बना सकते हो नोट्स, क्योंकि इसमें ज्यादातर सिंगल पर्टिकुलर तो कम क्वेश्चन आता है, इसमें सारे एक बार आ गया था 2017 या 2018 में आया था कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर स्टडिंग द जेनेटिक प्रिंसिपल्स इन मैथ, तो उसमें हमें सारे ही लिखने थे, 5-6 लिख देते, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था आई फील। तो मैन मतलब पेडिग्री एनालिसिस, ट्विन स्टडी, को ट्विन, वो सारा ही थोड़ा थोड़ा लिख सकते थे हम। तो इसमें मतलब हमारे एक एक पेज के नोट्स होंगे, मतलब 10 मार्कर के अराउंड हर एक टॉपिक पे आप इसमें प्रिपेयर कर लेना। तो इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, मतलब एट मैक्स 10 मार्कर आएगा या तो क्लब्ड आएगा, तो उसमें आपको 5-6 लिखने हैं, 4 पेजेस में सारे, काफी सारे लिखने हैं। तो उस तरीके से बाकी इसमें जो मेजर वो है, इट इज रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी 2023 में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज ये वही इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है ये जो टॉपिक है। तो इसमें लेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऐड करो, जो भी रिसर्च हो रही है, क्रिस्पर, ऑल दैट दीज थिंग्स, तो या GM क्रॉप्स, इस तरीके से, तो वो सब चीजें, वो एग्जांपल्स इस टॉपिक में ऐड होनी चाहिए। मतलब हर टॉपिक का एक अपना वो है कि इसमें क्या चाहिए हमें। अब फॉसिल्स में हमें डायग्राम चाहिए,
रिसर्च चाहिए, इसमें एप्लीकेशन वाली एग्जांपल चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं। सो वो सर भी बताते रहते हैं एंड यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड बाय सीइंग द पीवाईक्यूज कि हाँ कि मतलब यूपीएससी इस टॉपिक से क्या पूछ रहा है, मतलब वो क्या चाहता है, मतलब हम किस तरीके से पढ़ें इस टॉपिक को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड उसको डिकोड करके मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट। अब देन 9.2 टॉपिक आ गया मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब मेंडल तो हमें पढ़ना ही है उसके ऊपर। अब इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इस साल का क्वेश्चन था, वो भी कवर्ड है इसमें, नोट्स में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड था। इसमें एग्जांपल्स भी थी, शायद सर ने ग्रुप पे भी एक आई फील एग्जांपल डाली थी, आई कलर वगैरह की यूरोपियंस क्या ऐसा कुछ वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो आई कोटेड दैट एग्जांपल आल्सो। क्योंकि उसमें जो मैंने मतलब फोटो नहीं है मेरे पास, बट मुझे मतलब हर एक उसमें क्लिप लगे हुए नोट्स थे, सोशियो कल्चरल के 50-60 पेजेस, फिजिकल के, मतलब लास्ट में मेरे उतने नोट्स बन गए थे। पहले रजिस्टर्स थे बट ग्रेजुअली विद रिवीजन विद अदर मतलब उसको शॉर्ट करते करते तो सिर्फ एक एक चार मतलब मेरे पास 4 क्लिप्स वाले वो थे। तो अल्टीमेटली यू आई वुड से कि 200 से 250 पेज के नोट्स होंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लास्ट हफ्ता होता है उसमें हम तभी रिवाइज कर पाएंगे। एंड वो इसलिए भी है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी सर कहते हैं इज वन ऑफ द मतलब वेरी छोटा ऑप्शनल की जिसको हम एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं उन 5 दिनों में जो हमें टाइम पीरियड मिलता है मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज आफ्टर जीएस देयर इज अ गैप ऑफ 5 डेज। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है वो चीज कि हमारे नोट्स उस तरीके से होने चाहिए कि जिसको हम एटलीस्ट रिवाइज कर सकें। तो उसमें मैंने ऐड कर रखी थी ये सारी चीजें कि डेफिनेशन हो गई, वो सारे हो गए। आर फिशर आई थिंक उनका वो एक ग्राफ है इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे, वो मैंने बनाया था। देन मैंने वो केस स्टडी मतलब लिखी थी, कोट करी थी विद द स्कॉलर कि किन की रिसर्च थी विद द ईयर। तो इस तरीके से सो वो 10 मार्कर था। आई फील कि अगर मैंने ये सब करके आया था उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू केस स्टडी ये सब रिसर्च स्कॉलर्स लिखे थे, तो आई वुड से कि 10 में से एटलीस्ट 6 तो मिले ही होंगे डेफिनेटली। देन 9.3 भी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। सिंड्रोम्स हैं ये भी नोट्स में भी हैं, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है, इग्नू वगैरह पे भी काफी डिटेल में कवर्ड है। इसमें बस बेसिकली यू हैव टू सी कि जो सर वो बताते हैं ना कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कि इसके सिम्टम्स मतलब वो क्या है, सिम्टम्स हैं वुड से कि वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसी हैं इसकी, वो सब चीजें हमें लिखनी होती हैं इनमें सिंड्रोम्स में, तो उनको याद करना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो लिख दो। एंड प्लस इसमें व्हाट यूनिक यू कैन डू इज कि इसमें अब यू कैन कोट एग्जांपल्स की जिसमें सब डाउन सिंड्रोम है। सो देयर वाज अ रीसेंट वो कि एक डाउन सिंड्रोम की गर्ल हैं, उन्होंने कुछ पेंटिंग में कुछ किया या कुछ उस तरीके से इंटेलेक्चुअल किसी उसमें शी वॉन समथिंग। सो उस तरीके की एग्जांपल की मतलब कि हाउ वी कैन रिहेबिलिटेट या सच पीपल विद सच सिंड्रोम्स। तो उस तरीके से यू कैन ऐड सच थिंग्स इन दीज। तो लेटेस्ट हम वो चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल्स, या उस तरीके से हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं उसमें भी आता रहता है ये सब चीजें, विच एवर न्यूज़पेपर यू आर रीडिंग, तो यू कैन पिक अप दीज थिंग्स कि डाउन सिंड्रोम हो गया या क्लाइन फिल्टर है, तो इसमें अब फॉर ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट इज डूइंग, जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ किया, वो जो जीएस में भी हम पढ़ते हैं टॉपिक, तो उस तरीके से वो सब चीजें हम इधर थोड़ी यूज कर सकते हैं, पॉलिसीज क्या कुछ आ रही हैं नहीं, तो दैट विल हेल्प फेच थोड़े से 1-2 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी सब चीजें तो लिखेंगे, सब सिम्टम्स लिखेंगे, बट दिस इज द थिंग विच यू कैन डू एक्स्ट्रा इन दिस। देन अगेन ये 10 मार्कर्स वाले टॉपिक्स हैं, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग की तो एप्लीकेशन बढ़ ही रही है आने वाले टाइम में, सर भी शेयर करते रहते हैं, प्लस उसमें ऑनलाइन भी काफी आता रहता है। सो इसको यू कैन ऐड इन दिस लेटेस्ट जो है जीन मैपिंग जीनोम स्टडी है, तो बहुत ज्यादा ये एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इज हैपनिंग एट अ वेरी वास्ट स्केल, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है इसमें। सो कीप फॉलोइंग दिस एंड उसमें ऐड करते रहना बेसिक्स में। देन रेस अगेन सर के नोट्स हैं, इग्नू, these are the resources। देन जेनेटिक मार्कर्स वाला टॉपिक है,
उसमें भी प्रिंट आउट मैंने सिर्फ उसमें प्रिंट आउट किया था जेनेटिक मार्कर्स के लिए। मतलब उसमें जो प्रीवियस ईयर, ये टॉपिक ऐसा है इसमें थोड़ा प्रीवियस ईयर देख लेना, इसमें थोड़ा ज्यादा डीप में पूछ लिया था लास्ट ईयर। एक क्वेश्चन था आई थिंक, एक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये टॉपिक भी छोड़ के गया था, बट इस साल करके गया था कि एटलीस्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन हिस्टोग्लोपैथीन्स या इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया, RH ब्लड फैक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप हम अटेम्प्ट कर सकें। वो ज्यादा डिटेल में आ गया, डीप में आ गया तो वी कैन लीव दैट, बट अगर कोई बेसिक क्वेश्चन 10 मार्कर भी आ रहा है तो एटलीस्ट वो मिस ना हो हमारा इस टॉपिक में से। देन इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एक्लेमेटाइजेशन, अडेप्टेशन एंड टू 4 वो हैं इसमें से बाहर जाते नहीं है, कभी कोल्ड क्लाइमेट आ जाता है, कभी हॉट आ जाता है, कभी मेजरली एल्टीट्यूड ज्यादा पूछते हैं। तो जस्ट प्रिपेयर इसमें होलिस्टिकली, इसमें थोड़ी सी रिसर्च, एक अभी कल परसों ही देख रहा था, सर ने भी डाला था, पता नहीं किसी और ग्रुप में था, कि वो हाउ वी आर अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज, उस तरीके से मतलब हमारे क्या हो रहे हैं, तो उस तरीके से जस्ट ऐड दोस थिंग्स इन योर नोट्स, तो बढ़िया मार्क्स फेच होंगे आपके। बेसिक्स तो आप लिख ही रहे हो, बेसिक्स तो आपके नोट्स हैं ही, क्या क्या रिस्पॉन्स है हमारा, बट जस्ट जब एक चीज इसको लिख देंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, लेटेस्ट ईयर को पूरा बॉक्स कर दो कि हाँ, लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज सीरियसली स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड ही इज अप टू डेट विद what researches are going on, and उस तरीके से। एंड प्लस मेजर थिंग इज दैट शोज कि हाउ यू आर रिलेटिंग द करंट हैपनिंग या करंट वर्ल्ड विद एंथ्रोपोलॉजी, so that shows that you are a good student of anthropology। करने को तो सभी कर रहे हैं, तो जिंदगी तो सभी जी रहे हैं उस तरीके से, बट एंथ्रोपोलॉजी भी सभी पढ़ रहे हैं, बट हाउ विल इट शो कि आप यू आर अ सीरियस स्टूडेंट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं। कल को फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन ऑफिसर, इफ यू आर नॉट एन ऑफिसर, तो प्लान बी के तरीके से भी यू कैन बी अ गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल। तो थोड़ा उस तरीके से वी कैन, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ो, PhD भी नहीं करनी, बट थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। देन एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट इज अगेन इन न्यूज, इसमें से आया भी क्वेश्चन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन के ऊपर भी क्वेश्चन था इस बार, तो वो भी नोट्स प्रिपेयर्ड थे PYQs के हिसाब से मेरे, तो आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने। एंड उसमें दोनों लिखने थे, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, दोनों लिखो। फिर प्रोटीन स्पेसिफिक पूछा हुआ था, तो मरास्मस था एंड आई थिंक क्वार्शिकोर और इस तरीके से जितनी भी सारी हैं, सो जस्ट मेंशन इट, तो वो सारे नोट्स में था। तो बस वो ये कि वो रिवाइज किया हुआ था, याद था, इसलिए उतर पाता, नहीं तो हम इस टॉपिक को इतना इग्नोर कर देते हैं, रिवाइज भी कम करते हैं, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। देन 10th ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली इसमें से आता है 15 से 20 मार्क्स का हर साल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, हर स्टेज ऑफ ग्रोथ पे 10 मार्क का रेडी रखो, सर के नोट्स में भी है, इसमें बहुत अच्छे से वो जो एक प्रिंट आउट डेडिकेटेड है टू दिस चैप्टर। एंड प्लस इसमें इग्नू आई रेफर्ड ग्राफ्स वैसे सर ने इसमें दिए हुए हैं अपने नोट्स में भी, बट उसमें से भी अगर आपको कुछ उठाना हो, कुछ स्कॉलर का नाम पुरानी, क्योंकि बहुत पुरानी स्टडीज हैं इसके ऊपर, 1920s या 30s की हैं एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, ऐसे तो सर बता देते हैं, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो यू कैन पिक समथिंग फ्रॉम देयर एंड एड इट इन योर नोट्स। सो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, हर स्टेज ऑफ ग्रोथ पे होना चाहिए हमारे पास 10 मार्कर। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में, सो हर एक फैक्टर क्या क्या इफेक्ट ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, सो उसके ऊपर वी विल जस्ट मेक नोट्स, 10 मार्कर हर एक फैक्टर के ऊपर भी बना लो, तो एक साथ कंबाइंड फैक्टर्स भी पूछ ले तो 15 या 20 मार्कर वी कैन राइट। देन एजिंग थ्योरीज, ये थोड़ा लेटेस्ट वो है टॉपिक विच UPSC इज आस्किंग, थ्योरीज ऑफ एजिंग, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च कर लेना। आई रिमेम्बर कि इस साल मैंने थोड़ा ChatGPT यूज किया था इसकी थ्योरीज के लिए, बिकॉज वो नॉर्मल सर्च करने में मुझे मिल नहीं रही थी, तो अगेन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्टिवली, बिकॉज उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है हर एक उसकी टेक्नोलॉजी की भी, बट थोड़ा सा, बट उसको वेरीफाई कर लेना अदर सोर्स के साथ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गलत मुझे लगा बता रहा था। बट यू कैन ऑलवेज थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लेके
फिर वो कीवर्ड से अदर उसमें सर्च करके उसमें से वी कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट। बिकॉज मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरे नोट्स नहीं थे इसकी टॉपिक के ऊपर, तो इस साल मैंने बनाए थे थ्योरीज ऑफ एजिंग। तो इस तरीके से जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न एंड जस्ट ट्राई टू मेक नोट्स। 10 मार्क का, 15 मार्क का, 20 मार्क का, बस उतना 2-3 पेज का नोट्स होना चाहिए हमारे पास। देन 11.1 मेनार्क मेनोपॉज, इस साल भी आया था क्वेश्चन, वेरी जनरल टॉपिक एंड वेरी आई थिंक स्कोरिंग टॉपिक। इसमें आई रिमेंबर क्लियरली कि इसमें व्हाट आई डिड, मेनोपॉज के ऊपर इस साल क्वेश्चन था एंड इसमें से सर आई हैड एडेड इंडियन एक्सप्रेस में से एक एम्स का इनिशिएटिव था, दैट हाउ इट इज हेल्पिंग द women who are undergoing menopause। तो उस तरीके से जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उस कैल्शियम की कमी हो जाती है उस तरीके से, तो कैसे देयर वाज वन फीमेल डॉक्टर इन एम्स, तो वो इसके ऊपर कुछ कर रहे थे। शी वाज हेल्पिंग, मतलब डाइट वगैरह कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस तरीके से। सो आई कोटेड दैट इन दिस आंसर। सो आई मतलब एक तो बेसिक हो गया एंड देन आई हेडिंग दैट की मतलब what we can do to improve the condition, उस तरीके से मैंने एक हेडिंग बना के एंड देन आई एडेड 1 पैराग्राफ ऑन इट कि रिसेंटली एम्स में ऐसे हो रहा है। सो आई डोंट थिंक कि वो किसी और ने किया होगा इस तरीके से। सो दैट इज द वे यू हैव टू, मतलब ऑलवेज व्हेन वट एवर यू आर स्टडिंग, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, एक तो जीएस के लिए तो हमें उठानी है चीजें, बट ऑप्शनल के लिए भी हमें चीजें उसमें से मिल सकती हैं। तो इस तरीके से आई पिक दैट एंड वो मेरे नोट्स में था थोड़ा सा, मैंने एक लाइन लिखी हुई थी, उसको मैंने एग्जाम में दो लाइन बना दी इस तरीके से। सो वो थोड़ा यूनिक टच यू कैन गिव टू योर आंसर। देन डेमोग्राफिक थ्योरीज, इसमें भी आई थिंक कि सर के नोट्स भी हैं एंड प्लस गूगल कर सकते हो, इसमें थोड़ा पुरानी थ्योरीज हैं तो जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट। Then 11.3 biological, socio-ecological factors influencing fecundity, fertility. So ये factors हमें डिटेल में काफी हैं। इसमें आई रेफर्ड नारायण अमित सर नोट्स उनके, उन्होंने क्योंकि बहुत सारे 15-20 पॉइंट लिख रखे थे तो वहां से मैंने उठा लिए थे। Then applications of anthropology, again very मतलब टॉपिक जो यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स इट। तो स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी हो गया, किन एंथ्रोपोमेट्री व्हाट वी स्टडी, सो उसमें भी हम बहुत एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। स्टडीज हैं, पुरानी है वैसे, बट उसमें भी वो जो आई थिंक एक वो ट्राइबल्स में हॉकी वाली एक स्टडी है, आई एम फॉरगेटिंग द स्कॉलर, एंड वो सब चीजें, बो एंड एरो वाली एक स्टडी है, उस तरीके से यू कैन ऐड देम। न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस, डिजाइनिंग और डिफेंस, ये भी बहुत बार पूछ चुके हैं यूपीएससी। तो इस तरह मतलब दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स आई फील कि इसमें आपके टॉपिक्स रेडी हैं, लेटेस्ट एग्जांपल आपने ऐड कर दी। अब इसमें रफेल की कुछ एग्जांपल चाहती, क्योंकि तब न्यूज में आया था कि रफेल को मतलब मॉडिफाई किया गया था फॉर इंडियन एयरफोर्स पायलट्स, तो उस तरीके से वो एग्जाम्पल लिख दो। इस तरीके से काफी कुछ होता रहता है। देन देयर वाज एग्जांपल वो 6 के लिए हेलमेट जो डिजाइन करा जा रहा था, तो उस तरीके से। सो दैट इज बेसिकली वो ergonomics ही है बेसिकली। सो दैट इज एंथ्रोपोलॉजी इन डिजाइनिंग ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट्स। देन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल्सो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर मतलब ये सारे टॉपिक्स आई एम टेलिंग कि इसके ऊपर नोट्स होने चाहिए। इस साल ही आया था प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज, मतलब आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम, तो ये भी क्लियरली वो आई रिमेम्बर वो फॉर्मूला भी मैं लिख के आया था एग्जाम में, वो सर का है, एक फीमर की लेंथ से कैसे वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मतलब आई थिंक कि पहले तो आपको पता होंगी, दूसरा मतलब बहुत कम लोगों को पता होंगी, दूसरा बहुत उसमें से भी कम लोग लिख के आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब 1 या 2 लोग इसको लिख के आएंगे तो डेफिनेटली योर्स विल बी अ यूनिक आंसर उस क्वेश्चन पे, तो क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स। बढ़िया डिफरेंट, मतलब फॉर्मूला आपको याद भी है, आप लिख भी रहे हो, तो मतलब डेफिनेटली यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। देन अगेन अप्लाइड जेनेटिक्स का ही इसमें भी दिया हुआ है कि अप्लाइड जेनेटिक्स वही बेसिकली RDNA हो गया, जेनेटिक काउंसलिंग, अगेन वो रेपिटेटिव है काफी। जो सर की वो सिलेबस वाली वीडियो सबसे पहले देख लेना, जो भी अगर नए बच्चे हैं तो उसमें से पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक रिपीट है सब कुछ। वो बहुत पुरानी वीडियो है, आई गेस 4-5 साल पुरानी वीडियो है, तो उसमें क्लियरली बता रखा है सर ने। So I think we are done with socio-culture, physical, and 1.8 टॉपिक रह गया, उसको हम पेपर 2 के आर्कियोलॉजी के साथ कवर कर लेते हैं। इसमें अभी तक कोई डाउट?
कुछ पूछना हो किसी को कुछ रिगार्डिंग दिस, बीट ऑनलाइन बच्चे। विच डिक्शनरी सर एक बताते हैं मैकमिलन वाली, वो डिक्शनरी। Yes, sir. So that was your choice for like the fifth question, sixth question. So, sir, in that one question was critically discuss the controversies related to Malinowski. That was one question, and impact of globalization. I think that was a pretty easy question. So, sir, how to choose these questions? Like in that time pressure and comparatively, 2023 paper was a bit different from all the past papers. Like, so how did you handle these questions? Like, आई थिंक मतलब वो प्रिडिक्टेबल ही है, वो यूपीएससी इस तरीके के पेपर की तरफ ही जा रहा है आफ्टर 2019, yeah, स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, तो उसी लाइंस पे था पेपर। तो आई वुड से इसमें व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो वाज सबसे पहले चलो आई विल डिस्कस द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बीच में, देन विल कवर द अदर टॉपिक्स। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन तो फिक्स्ड ही है हमारा, वो तो करना ही है, उसमें तो कोई चॉइस नहीं है। एंड उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट की एटलीस्ट वन क्वेश्चन हमें ईच सेक्शन से करना है। तो सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन चूज करता, मतलब एटलीस्ट वन क्वेश्चन ईच में से आइडेंटिफाई करता था कि ये तो मुझे श्योरली करना ही है। सो लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बच जाता था चूज करने के लिए कि जो मैं ईदर ऑफ द सेक्शन से कर सकता था। तो उसमें से व्हाट यू कैन डू, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक यू कैन यूज की, मतलब सबसे पहले कि 20 मार्कर, तो मैं सबसे पहले देखता कि 20 मार्कर ए और बी तो मुझे श्योरली आना ही चाहिए, बिकॉज एनी क्वेश्चन आई एम अटेम्प्टिंग। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ए एंड बी अगर अच्छा करूंगा, सी थोड़ा सा भी खराब हो गया, थोड़ा सा कम भी लिख दिया, तो आई विल गेट रिवॉर्डेड की, मतलब वो मेरी पास्ट वो गुडविल की वजह से थोड़ा सा आई विल बी रिवॉर्डेड की, थोड़ा सा अगर सी पार्ट कम भी आता होगा, मतलब उसको थोड़ा कम भी लिख दूंगा। तो वैसे तो तीनों ही आने चाहिए, बट इन केस कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा अटेम्प्ट करना पड़ रहा है तो सी वाला पार्ट थोड़ा सा कम आता हो, तो सी क्वेश्चन तो उसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो 20 मार्क ए और बी जिसमें आते हैं आपको श्योर शॉर्टली आते हैं, तो इसमें आई अटेम्प्टेड की फोर्थ क्वेश्चन किया था शायद मैंने, आई रिमेम्बर फोर्थ एंड सिक्स्थ सबसे पहले मैंने चूज किया था। वन सेकेंड, लेट मी ओपन द पेपर। या सो फोर्थ क्वेश्चन में मैरिज रेगुलेशंस, और इसमें भी इन पर्टिकुलर इंडिया पूछा था, तो इसमें इंडियन एग्जांपल्स थी मेरे पास सारी। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कोट किया था मैंने इसमें, बिकॉज कई बार हम लेटेस्ट तो हमें ऐड करना ही चाहिए, बट एक क्या कहते मतलब ट्रेडमार्क या मतलब एक लैंडमार्क, उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में कोई चीज हुई होती है, तो इसमें पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है जो हुआ, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो वी हैव टू कोट दैट ओनली। तो वो कोट किया था मैंने इस क्वेश्चन में, मतलब मुझे आता था ये वाला क्वेश्चन के अच्छे से, तो 20 मार्कर टिक हो गया। एंड देन वेरियस मेथड ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैं बता रहा था, इसमें मैं वो सब मुझे फॉर्मूला सब याद था, सब नोट से पूरा याद था कि मतलब स्केलेटल फिंगरप्रिंट से कैसे कर सकते हैं उस तरीके से, मतलब वो डिफरेंट उसके पॉइंट्स बना के वो सब, मतलब मैंने क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से ही है तो मैंने इसका लिखा भी हुआ था आंसर, मतलब तो उस तरीके से याद भी था, रिवाइज भी था। तो ए एंड बी क्लियरली ओके, एंड सी बी प्लस इसमें अब मेजर मेसोलिथिक साइट्स एंड टाइपोटेक्नोलॉजिकल रेफरेंस, आई थिंक मतलब इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, मतलब आर्कियोलॉजी में साइट्स पता है, मैप बनाओ, टूल्स बनाओ, मतलब कितना सारा 3 पेज का क्वेश्चन है, कितना सारा तो हम वैल्यू एडिशन विद द डायग्राम्स उस तरीके से कर सकते हैं। एंड सो दिस वाज डेफिनेटली अ चॉइस फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से। एंड देन सेक्शन सेकंड बी की बात करूं तो उसमें से थोड़ा सा जो बहुत एक क्वेश्चन आ गया, वेरियस क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, तो एक्चुअली मैंने इग्नू से पढ़ा हुआ था, मुझे सॉफ्टवेयर के नाम भी याद थे कुछ 2-3, बट 20 मार्कर तो नहीं लिख सकते उस पर, बिकॉज इतना तो हम डिटेल में कभी पढ़ते नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि वी आर नॉट मतलब रिसर्च तो हम उस तरीके से कर नहीं रहे। आई फील की रिसर्च जो कर रहे हैं इस फील्ड में एंथ्रोपोलॉजी में, दे आर वेल वर्स्ड विद इट, बट ये टॉपिक दिया हुआ है इग्नू में, एक पीडीएफ है इसके ऊपर, एंड तो उसमें से मतलब सिलेबस का भी टॉपिक है, तो यूपीएससी को टास्क, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली सो वो क्वेश्चन गया 20 मार्कर, तो मैं नहीं लिख सकता 4 पेज, सो दैट विल इज एलिमिनेटेड। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, तो कंट्रोवर्सीज बेसिकली इट वाज क्रिटिसिज्म ओनली, एंड इसमें थ्योरीज में उसमें अलाबामा वाली वेबसाइट पे भी है, स्कॉलरली क्रिटिसिज्म्स हैं, तो वो सब नोट्स में थे मेरे, तो उसमें से आई रोट, मतलब 4 पेज का क्वेश्चन है, 2 पेज आई डिवोटेड टू
Malinowski and 2 pages to Margaret Mead. तो उसमें बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या है थ्योरी अबाउट, एंड देन 1.5 पेज में या 1 पेज में मतलब थोड़ा सा खींच के मतलब कंट्रोवर्सी या क्रिटिसिज्म लिख दिया, एंड देन सिमिलरली टू दैट। तो इसके ऊपर भी टॉपिक ऐसा था, मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि विच वाज नॉट आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, तो दिस कुड बी अटेम्प्टेड। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम इतना इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में मतलब मेन कितनी बार आ भी चुका है, पढ़ते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ग्लोबलाइजेशन, मतलब इधर पेपर 1 या पेपर 2 में आती है, पिछले साल पेपर 2 में भी थी, ऑन विलेजेस था आई फील लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो ये तो रिपीट होती है, मतलब इस पे तो बढ़िया नोट्स होने चाहिए, लेटेस्ट रिसर्च कोई भी सर डालते हैं वही। आई फील कि इसमें भी कुछ थी रिसर्च, कुछ डाली थी, आई रिमेम्बर मैंने वो कोट करी थी कि मतलब कैसे ट्राइबल्स आर मूविंग टुवर्ड्स, जैसे ब्राजील में कुछ चल रहा है, हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टिंग दोस, तो उस तरीके से कुछ भी न्यूज में है उस तरीके से, वो दैट यू कैन ऐड इन दिस। एंड देन डिस्कस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, अगेन वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि क्या क्या डीएनए वेयर इट इज यूजिंग। सो 1 and 1 डन, एंड देन बचा थर्ड क्वेश्चन विच यू हैव टू चूज। सो उसमें अब अगेन यू कैन चूज ओनली व्हेन यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। अगर आपने टॉपिक ही नहीं कवर किया तो देन ऑब्वियसली यू विल हैव लिमिटेड चॉइसेस ओनली, तो कुछ तो क्वेश्चन वैसे ही लिमिटेड हो जाएंगे आपके। बट इसमें क्या था कि अब सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में आई हैड अ चॉइस, एंड आई हैड अराउंड 30 minutes लेफ्ट, विच इज 30 भी 28 ही था, विच इज 7 minutes लेस देन द आइडियल टाइम, मतलब लास्ट में आई अटेम्प्टेड दिस। तो अब सो आई कुड हैव गॉन फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन, वो भी आता था मुझे, जिसमें होमोनाइजेशन प्रोसेस पूछा था, एंड देन सेकंड वाज गीट्स की डेफिनेशन, वो भी मुझे याद है कि बहुत रिलीजन की 3 लाइन की डेफिनेशन है, वो भी मैंने याद कर रखी थी रिलीजन के ऊपर, वो भी मतलब मुझे पेपर में याद थी। एंड देन अगेन मिक्स लॉन्गिट्यूडनल मेथड्स, एंड व्हाट इज मिक्स लॉन्गिट्यूडनल मेथड ऑफ स्टडिंग ग्रोथ एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसमें भी सीधा क्वेश्चन ग्रोथ टॉपिक का इजीली वी कैन राइट इसमें भी। बट इसमें व्हाट वाज इंपॉर्टेंट है कि अगर होता है तो रिसर्च, वो भी मेरे नोट्स में थी कि what mixed longitudinal studies have been done किस टॉपिक, मतलब 1-2 केस स्टडीज विद स्कॉलर, सो दैट could have been quoted. But other question was Australopithecus and then archaeology, वो भी रिपीट क्वेश्चन था 2022 से या 2021 से आई फील, पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट वाला। और उसमें भी मैंने रेड द क्वेश्चन, उसमें भी पैलियोलिथिक एनवायरनमेंट पूछा था, तो इसमें 3 पेज लिखने थे, उसमें भी हमारे पास 3 पैलियोलिथिक हमें लिखने थे, लोअर मिडल अपर, तो इजीली एक एक पेज लिखना था बस। तो बस वो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट इज वेयर द डिमांड कम्स, मतलब कि उस तरीके से आई डिकोडेड कि इसमें तो एक एक पेज लिखना बहुत ईजी है, अब इतना हमने पढ़ा हुआ है लोअर पैलियोलिथिक मिडल अपर, अब उसमें से एक एक पेज लिखना है बस, उसमें से भी थोड़े से टूल्स बना दो, बिकॉज दे आस्क्ड अबाउट विद द मतलब एविडेंस के कुछ उसमें पूछा था। तो क्लाइमेट, मतलब जो सर जो ब्रेकडाउन बताते हैं उसमें क्लाइमेट या एनवायरनमेंट, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट कि किस तरीके का था, सो वी जस्ट हैव टू थोड़ा सा मोल्ड करके उसको अटेम्प्ट करना था। सो दीज, जैसे मैंने कहा कि टाइम कंस्ट्रेंट था, क्वेश्चंस इक्वली आते थे मुझे, बट आई फेल्ट कि ऑस्ट्रोपैथिक क्वेश्चन में आई कुड हैव मेड, पहले तो अफ्रीका का मैप बना सकता था, उससे स्पेस कवर हो जाता, टूल्स बना सकता था, मतलब उसका जो भी था, एंड उसमें स्टडीज भी याद थी। सूजन, आई रिमेम्बर सूजन वाली थी वो, एक स्टडी थी इस तरीके से, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एंड आई फेल्ट कि 20 मार्क्स मैं जल्दी कर सकता हूँ, विच नॉर्मली टेक्स 15 मिनट्स, तो वो मैं 10 मिनट में वो वाला क्वेश्चन कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास 27 मिनट थे, तो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो उस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब एक एक क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिफाई करना ही है, वो तो मिनिमम है। देन जो थर्ड क्वेश्चन है, देन यू कैन अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से यू कैन चूज इट विच एवर स्ट्रॉन्ग एरिया यू फील। सो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सर, और जो नोट मेकिंग में ग्रुप यूटिलिटी का आप क्या सजेस्ट करोगे कि नोट मेकिंग शुड बी लाइक, नाउ वन थिंग दैट आई हैव डिसाइफर्ड टिल नाउ इज दैट heavily relying on current affairs updates in application oriented chapters, but what about the static questions that we come? So is there any framework which you can say that कि okay, अगर एंथ्रो के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो इतने क्वेश्चंस आप करके जाओ, क्वेश्चंस फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे?
नहीं, वो आई सेड ना कि PYQs उसमें से करो। हाँ, जस्ट डू द PYQs। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ और एक्स्ट्रा आपको मतलब और क्वेश्चंस करने की जरूरत है। जस्ट उसमें से जो भी PYQs में टॉपिक हैं, जो भी पूछा गया है या सिलेबस के हिसाब से, जस्ट ट्राई टू कवर दो। उसकी हर एक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। जैसे आई सेड कि एक स्कॉलरली कुछ अगर इंट्रोडक्शन है उस टॉपिक पे तो वो रखो। एंड देन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जस्ट एक टॉपिक एंड 5 to 6 पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। प्लस उसमें अगर कुछ और रिसर्च कोई केस स्टडी ग्रुप पे आ गई उस तरीके से आ गई, सो यू कैन ऐड दैट। टेम्पलेट होना चाहिए। हाँ, वो टेम्पलेट वही बेसिकली टेम्पलेट वही है कि एक इंट्रोडक्शन हो गया एंड देन वट एवर PYQs के हिसाब से 2-3 डिफरेंट, अगर डिफरेंट तो इतना है भी नहीं, 1-2 चीजें ही डायमेंशन कम है, सो उन डायमेंशन पे मेरे पास सारे नोट्स होने चाहिए। 6-7 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स। देन एक मेरा मतलब नोट्स का टेम्पलेट बताऊं तो इंट्रोडक्शन टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, टेम्पलेट की हेडिंग होगी, उसमें पॉइंट्स हो गए। एंड देन जगह खाली होती थी नीचे या एक एक्स्ट्रा पेज लगा दिया, तो उसमें कोई भी केस स्टडीज वगैरह आती रही या कोई भी ग्रुप पे आ गया तो कीप ऑन राइटिंग इट। सो 2-3 उसमें लिख दो, क्योंकि पता नहीं ना क्वेश्चन कैसा आ जाए, कौन सी चीज कहाँ यूज हो जाए, तो एटलीस्ट 1-2 तो हमारे पास उस टॉपिक के लिए होनी चाहिए। कई बार फिट बैठ भी सकती है, कई बार नहीं भी बैठ सकती। नहीं बैठ रही तो जबरदस्ती घुसाना नहीं है, वो दैट डिफीट्स द पर्पस। वो डिमांड एकदम खराब हो जाएगी, एग्जामिनर चिढ़ भी सकता है। Sir, I was coming on that part only कि आपने बोला कि जैसे we see like the directives are given, describe, elucidate, comment, तो ये सारे ऑप्शनल में भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। डायरेक्टिव्स नहीं बोला मैंने बोला क्वेश्चन की डिमांड। question की हाँ, demand, तो सर वो कैसे आइडेंटिफाई होगी? मैंने जैसे बताया ना एग्जांपल, अब इसमें पैलियोलिथिक हाँ, उस तरीके से आई रिमेम्बर, जैसे वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटल रिमेन्स। अब इसमें क्लियरली वी हैड टू स्केलेटल रिमेन्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था देन अदर। देयर आर वेरियस मेथड्स, फिंगरप्रिंट वाला है उस तरीके से भी है, बट इसमें बोन्स या उस तरीके स्केलेटल रिमेन्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था हमारा डिमांड का। इस तरीके से आई मीन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नो 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 नॉट, वो बस सब सेम ही है ऑलमोस्ट। बस उसमें एक ही शायद जिसमें क्रिटिकली हो जाता है उसमें, तो वो दैट बिकम्स नेसेसरी। हम बिना उसके क्रिटिकली भी, जैसे मैंने बोला कि 1-2 पॉइंट्स वी कैन राइट द काउंटर, बट जिसमें क्रिटिकली लिखा है उसमें वी डेफिनेटली हैव टू राइट। बस वो थोड़ा इंपेरेटिव हो जाता है, अदरवाइज मतलब GS में भी मैंने कोई ज्यादा कीवर्ड्स पे फोकस नहीं किया, ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत है आपको कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स आर नॉट द मतलब मेन डिमांड। जो मेन डिमांड वो जो क्वेश्चन है, जैसे आई एम टेलिंग हियर कि जैसे स्केलेटल रिमेन्स हो गया, सो स्केलेटल रिमेन्स के ऊपर फोकस करना, दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मतलब इसमें डिस्कस इज नॉट द डिमांड, स्केलेटल रिमेन्स वाज द फोकस एरिया, उसके ऊपर हमें फोकस करना था इसमें। अब इसमें आइडेंटिफाई द, जैसे एक और क्वेश्चन था सी पार्ट था, आइडेंटिफाई द मेजर मेसोलिथिक साइट्स। अब आइडेंटिफाई में तो आप मैप बनाओ एंड सीधा जस्ट मार्क इट आइडेंटिफाई, बट इसमें थोड़ा सा वी कैन गो, थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा। साइट्स के बारे में थोड़ा लिख देंगे। एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया इज द डिमांड। थोड़ा सा लिख के, मेन फोकस हैज टू बी ऑन इंडिया, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिमांड। अब हम मेसोलिथिक में सारा लिख देते, मेसोलिथिक इन यूरोप नहीं लिख सकते इसमें, या मेसोलिथिक इन जनरल लिख सकते, तो स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया दैट शुड बी फोकस्ड अपॉन। सो दैट इज मेंट बाय डिमांड। मतलब वही ना कि हमें जो पता है, कई बार वी टेंड टू राइट दैट थिंग्स, वो नहीं लिखना। अब रेफरेंस टू इंडिया पूछा तो रेफरेंस टू इंडिया लिखना उस तरीके से। Sir, I have just started answer writing. So the main issues that we face is, sir always says that if you need 150 words, I'll give you 200 words in the notes. On top of that, you have the value additions, the recent researches, the examples, along with the scholars. So my question to you is, how did you squeeze your notes or all the material, all the content within the word limit as prescribed by UPSC? Like क्या डालना है, क्या हटाना है? How did you decide? वही कह रहा हूँ ना कि जब व्हेन वी रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, अभी आपके रजिस्टर में नोट्स होंगे, व्हेन उसके बाद अगर आप इसको और रिवैम्प करोगे, सो फॉर आई वुड से कि जैसे अभी अराउंड आपके होंगे, हर सब्जेक्ट के एक रजिस्टर होगा तो 300-400 के होंगे। मतलब हर सब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, सोशियो कल्चरल के लिए एक लगा लो, फिजिकल के लिए एक लगा लो,
तो इस तरीके से, बट दैट हैज टू बी स्क्वीज टू 60 पेजेस, 50 to 60 पेजेस. सो दैट इज व्हेन जब आप उसको रिवाइज करोगे, अगेन पीवाईक्यू देखोगे, टेस्ट दोगे, आंसर राइटिंग करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड. कि मतलब वो केस स्टडी, वो एक लाइन एक ऐसा एग्जांपल ही लिखनी होती है, वो पूरा एक पैराग्राफ नहीं लिखना होता उसमें. सो एक रेफरेंस यू हैव टू गिव दैट यू हैव टू शो कि मतलब 10 मार्कर की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जस्ट हैव टू शो कि हाँ इसमें दिस स्टडी इज हैपनिंग, एंड उसका बस बेसिकली वी हैव टू राइट द क्रक्स, पूरी मतलब उसका प्रीमाइस या कहानी वो नहीं लिखनी है हमें पेपर में. In any case, I'm asking, in any answer, can we substitute the statements with a diagram? उससे word limit कम हो जाएगा. Like I'm just asking. हाँ डेफिनेटली, मतलब अगर कुछ मतलब बट दैट हैज टू बी वेरी मच रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, Relevant the question. वेरी मच रेलेवेंट. Like instead of writing the places where that fossil was found, we can Definitely just you do a can write a map. map. It can like shrink the size of the answer. Definitely. It will not shrink, it will cover the space which is needed. Exactly. It will मतलब जिसमें आप वर्ड्स देखोगे, मैप बनाना मतलब 1 मिनट का काम है तो उसमें आपके 3 मिनट जाएंगे, यू विल सेव 2 मिनट्स. हाँ, मतलब दोनों करने की जरूरत नहीं है. या तो दोनों diagram नहीं करना, करना, दोनों अगर जैसे उसने स्पेसिफिकली पूछा, एक बार आपने थोड़ा बना दिया एंड उसके ऊपर अगर साइड्स के ऊपर आपको लिखना है एक पैराग्राफ क्वेश्चन उस तरीके से, तो देन यू राइट. अदरवाइज इफ इट्स अ 10 मार्कर सो देन यू डोंट हैव टू राइट. Okay. अगर मीजोलिथिक कल्चर के ऊपर 10 मार्कर आया है तो एक मैप बना के वी आर जस्ट हैव टू मेंशन द साइट्स एंड अदर चीजें लिखनी है, उसके टूल्स लिखने हैं, क्लाइमेट लिखना है, बाकी चीजें लिखनी है. सो वी डोंट हैव टू राइट इट, मतलब उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखना. हाँ भाई, मतलब डायग्राम्स, फ्लो चार्ट से हम दिस विल अगेन, आई एम सेइंग that this will again comes when you understand the demand of the question. demand of the question. Okay. So then you will write only those points which you think you are relevant. क्योंकि होता है कि जब when we start the answer writing we tend to write everything. जैसे 200 वर्ड्स हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम 200 वर्ड्स को रेप्लिकेट करें irrespective of what is being asked. Because I have also gone through the same process, that's why I know. So मतलब वो 2-2.5 साल यही गलतियां करी हैं. So वो होंगी भी चाहिए, मतलब होनी भी चाहिए. आई फील कि उसके बाद when you realize कि नहीं हो रहा, then you try to improve it. So starting में you do it, मतलब वो जितना फेलियर या खून बहाना मतलब पसीना बहाना है वो यहाँ बहाओ. द मोर यू स्वेट एंड मतलब विदाउट वाटर दैट्स यू ब्लीड इन वार वाला जो कोट है. सो दैट इज द केस हियर. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो इवेंचुअली व्हेन यू विल रिवाइज राइट आंसर्स, वैल्यू ऐड भी मतलब थोड़ा बहुत अगर करोगे, अगेन राइट रिवाइज, सो देन यू विल कम टू दैट ऑप्टिमम लेवल. मतलब some people feel they have cracked the code या उस तरीके से, but the only code that I have cracked for this exam for mains is revision and answer writing. That is the only code that I have cracked. I don't know, some other people might have cracked some other code. कि there are 1,000 people who have been selected and there are 1,000 different strategies, but the only code that I have cracked is this. Make notes, revise, write answers, repeat. That is the main crux, I feel. And for answer writing, PYQs were your only source, or other than that, you joined any test series for Anthro? PYQs were the major source, Major but between pre and mains, you have I joined one test series. Okay. And उसमें सर भी ऑफर करते हैं, but and you can take मतलब इस साल because I had attempted मतलब last year भी करा था, तो इस साल I took 2. Along with these questions of this institute, I took one another test series. तो उस तरीके से मतलब क्योंकि उसमें because इस साल मेरा प्लान ही था कि I have to write answers. मतलब I have told other places also in other talks that इस साल I daily wrote a 3-hour test from 1st August to around 10 September. डेली 9 से 12 है या 10 से 1 सुबह उठ के डेली में लिखता था, मतलब GS ऑप्शनल जिसमें PYQ भी लिखता था. मतलब कभी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन उठा लिया, कभी PYQ खुद बैठ के लिख लिया, रजिस्टर पे लिख लिया, 3 घंटे का टाइम. बट बेसिकली यही था कि मुझे आई हैव टू राइट 3 hours एंड देन टुवर्ड्स द एंड एक दिन में मतलब वो बिल्ड करने के लिए 2 times भी मतलब सुबह शाम वाला, तो वो भी करना चाहिए लास्ट में. यू कैन डू इट फॉर, मैंने 2 बार किया था, मतलब एक बार तो मतलब सेंटर पे जाके एंड एक बार घर पे किया था, तो दैट इज ऑल्सो नीडेड. So this I did, मतलब this is what I changed from last year.
be valid like these 90 days now? Because I think for this means we are running 90 days around. So how did you like the time management approach? And you were a working aspirant, I think. Yeah, I was working this year. मतलब ये वाला attempt मेरा was along with the job. So I went to job and then after I मतलब आंसर की मिला के पता लग गया था हो रहा है. And then I started revising my notes because when we are in the pre-spree तो उसके बाद हमारा वो मेंस वाला orientation थोड़ा कम हुआ होता है. So जो मुझे notes revamp करने थे last year से I did that, some of that, and then I started revising the notes जो भी मेरे थे. So what would you suggest for like these 90 days for 2024 attempt people? First of all, start with the optional. हाँ. ऑप्शनल का जैसे वन मतलब जीएस का एक स्टार्ट कर दिया था रिवाइज नोट्स रिवाइज करना एंड वन ऑप्शनल आई स्टार्टेड. इसमें सोशो कल्चरल से ही मैंने स्टार्ट किया था. दिस मैरिज फैमिली रिलेशनशिप ये वाले जो टॉपिक्स हैं. सो इसको रिवाइज करके आई रोट मतलब पीवाईक्यूज लिखे एंड देन टेस्ट भी लिखा इसका वो हो गया. देन थ्योरीज का टेस्ट लिखा. देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वेंट टुवर्ड्स इट. मतलब जून एंड तक लास्ट ईयर प्लेन्स वाज ऑन 28 मई 12 जून को रिजल्ट आया था. तो आई फील कि बाय द एंड ऑफ जून और बाय 4th जुलाई आई वाज मतलब सोशियो कल्चरल मेरा हो गया था. फिजिकल भी मैंने रिवाइज कर लिया था एंड आई वाज अबाउट टू राइट द टेस्ट. तो उस तरीके से सो फिजिकल का टेस्ट लिखो. हाँ वही मतलब नोट्स बट नोट्स ऑलमोस्ट रेडी रखना. अभी है नहीं भी है तो मतलब फटाफट पहले नोट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना. अभी यू कैन फॉर दिस मंथ अभी दिस इज 22nd. सो अभी आई थिंक कि और मतलब 1 वीक दे दो. जिनके थोड़े टॉपिक्स के बच्चे हैं जिनके थोड़े ज्यादा टॉपिक्स हैं एटलीस्ट 2 वीक्स देके पहले नोट्स करो. बिकॉज नोट्स होंगे तभी वी कैन रिवाइज देम अगेन एंड अगेन ना. तो वो अभी वी कैन मतलब अभी दिमाग में आएगा नहीं यार अभी पढ़ लेता हूँ अभी ये कर लेता हूँ. मतलब अभी नोट्स बनाने में कहाँ एफर्ट लगा होगा बट वो डिविडेंड देगा. वो अभी एक बार अगर नोट्स बना लेंगे तो वो लास्ट तक देगा. मतलब वो एग्जाम में से जाने से पहले भी वही चीज हम देखेंगे. बुक तो नहीं देख पाएंगे तो नोट्स ही देख पाएंगे. तो अभी ऐसा लगेगा कि नहीं अगर मैं अभी नोट्स बनाने जाऊंगा तो टाइम जाएगा. बट यू कैन गिव टाइम टू इट बिकॉज वो ही बेनिफिशियल रहेगा. लास्ट मोमेंट तक वही हेल्प करेगा. So optional primary, second GS, मतलब one subject of GS. हाँ वन सब्जेक्ट GS1 मतलब उसको GS1 to 3 4 उठा लो 4 3 2 1 उठा लो. दैट इज योर चॉइस. इफ यू फील यू आर गुड मतलब एथिक्स आपका डन है तो एथिक्स स्टार्ट कर लो रिवाइज कर लो. अगर नहीं तो GS1 से भी स्टार्ट कर सकते हो. मतलब उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. बिकॉज कई आई नो टेस्ट सीरीज भी शुरू होती है कोई ऑल्टरनेट शुरू होती है. मतलब सेम टेस्ट होता है बट कुछ GS4 से शुरू होता है कोई GS1 से शुरू होता है. सो इट्स योर चॉइस आपको किस में एनरोल करना है. अगर इफ यू आर एनरोलिंग इन दैट. Gaurav, this time we made a change actually in strategy for mains because the prelims they have been doing general studies. So we advise that till the time the result is out, already GS is in your mind. Definitely. Further enforce it. And after the result is out, we are going to have a 6-week session for info. Rigorous answer writing and discussions and all those things, including time-bound answer writing. So those 6 weeks they will be thorough with info. Again, they can take up DS. Definitely, So definitely. that strategy. वो भी दैट यू कैन डू. मतलब मेन इसमें जैसे सेट कि ऑप्शनल इट्स द मेन. मतलब जीएस में भी अगर आपको मतलब दिन में क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सारा दिन ऑप्शनली पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कुछ चेंज चाहिए तो नोट्स उसमें अगर रेडी हैं सोसाइटी के रेडी हैं. हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री तो वो पढ़ा ही है अभी प्री के लिए पढ़ा है. तो वो टॉपिक्स देख लो जैसे एथिक्स देख लो. तो उस तरीके से GS4 से शुरू कर लो. हाँ उसको मतलब ट्राई टू कवर दोस थिंग्स कि ऑप्शनल हो गया. ये जीएस में भी जो थोड़ा सा कवर करना है वो ट्राई टू कवर इट एंड ऑप्शनल से ही स्टार्ट करो. ऑप्शनल इज द मतलब इसमें इस टाइम पे काफी हेल्पफुल रहेगा. यस सर. नाउ कमिंग टू द पेपर 2 आर्कियोलॉजी पार्ट. एंड आर्कियोलॉजी में आई वुड से कि what are the sources. First of all I referred and DK Bhattacharya book, DK Bhattacharya sir's videos and sir's videos या sir के lectures जो हैं class में. So these were the basic मतलब जो ground या introduction to archaeology. Introduction भी है and the whole जो last तक भी रहा. So archaeology is definitely very important, very scoring. एज सेट कि वो सर क्लियरली बता देते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे करो, क्लाइमेट के बारे में लिखो, साइट्स के बारे में लिखो. सो वो फ्रेमवर्क इज वेरी हेल्पफुल इन कवरिंग होलिस्टिकली मतलब
आंसर भी कवर हो जाता है। अगर जनरल पूछा है, अगर स्पेसिफिक पूछा है, स्पेसिफिक भी हम उसमें से लिख सकते हैं। सो दैट फ्रेमवर्क इज वेरी हेल्पफुल। तो उसमें नोट्स हो, एंड इस साल आई रिमेंबर कि मेरे मेरे एक पेज पे मैंने सारे बना रखे थे। सर शेयर कर सकता हूँ कुछ इस, हो नहीं पाएगा सर। मतलब एक पेज पे था, लोअर पैलियोलिथिक हो गया, फ्रंट साइड पे मैप वगैरह, पीछे साइड पे मतलब आई जस्ट मतलब छोटा छोटा लिखा था, साइट्स लिखी हुई थी सारी, जो उन साइट्स की क्या क्या मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉर दो साइट्स, तो उस तरीके से। सो इस तरीके से फॉर एग्जांपल लोअर पैलियोलिथिक वाज लाइक दिस। कोई नहीं, आई शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, या सर को भी बोल दूंगा ग्रुप में शेयर कर देंगे। सो बेसिकली आई मेंट टू से कि मतलब जैसे लोअर पैलियोलिथिक अगर है तो वो एक A4 शीट के ऊपर मेरा पूरा लोअर पैलियोलिथिक था, तो जिसमें इट वाज इंट्रोडक्शन, इट इज द अर्लियर सब डिवीजन ऑफ पैलियोलिथिक, उससे इंट्रोड्यूस कर दिया। देन टाइम स्पैन, अब टाइम स्पैन भी वो है, उसमें भी सर कीप्स ऑन एडिंग। इसमें शांति पप्पू वाला आ गया, अगर इंडियन लोअर पैलियोलिथिक लिखना है तो शांति पप्पू वाला टाइमलाइन आ जाएगा। तो दैट वाज इन माय नोट्स, क्योंकि उसको ही बार बार रिवाइज करना है। उसमें ब्रैकेट में ईयर लिख दो, शर्मा सेंटर फॉर हेरिटेज एजुकेशन लिख दो, तो दैट इज वेरी स्पेसिफिक। सो 1.51 मिलियन टू 384, उसमें नेचर 2011 इस तरीके से कोड कर दिया। देन क्लाइमेट आ गया, ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल, नॉर्दर्न में, पेनिसुलर में, प्लूवियल, इंटरप्लूवियल। देन टूल्स, टूल्स में भी टाइप्स में एबिलियन एक्चुलियन दोनों आ गए, अगर जनरल पूरा लोअर पैलियोलिथिक है। अब उनके फीचर्स लिख दो, थोड़े से डायग्राम अपने नोट्स में बना लो। टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर, मटेरियल विच वाज यूज्ड, फिर रीजनल वेरिएशंस में मैप बना देंगे हम। तो एक मैप था मेरा वर्ल्ड का, अगर वर्ल्ड के ऊपर आता है क्वेश्चन लोअर पैलियोलिथिक इन वर्ल्ड, और एक था इंडियन मैप, तो इंडिया का मैप। अब उसमें भी लेटेस्ट, अब एक तो कुछ साइट्स हैं जो सारी लिखी हुई हैं, बस उसमें लेटेस्ट एडिशन अगेन वो आया था, सर ने ग्रुप पे शेयर किया था, कोंडा पेटा बाय M.K. सिंह। सो दैट वाज रिटन, सो आई गेस मुझे याद भी है, मैं लिख के भी आया था पिछले साल, कहीं भी लिख के आया था, यू मेंशन, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच गिव यू एज। रामापुरम भी एक नया उसमें है। देन सोशल लाइफ आ जाएगा उसमें, हंटिंग, गैदरिंग, फायर, उस तरीके से वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। देन उसके एक साइड पे ये था, एंड देन बैक साइड पे था व्हाट आर द साइट्स, मतलब उसको मैंने 4 साइट्स हैं तो 4 इक्वल उसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि बेसिक तो जनरल पॉइंट्स रहेंगे, उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख दो। सोवन वैली है तो सोवन वैली का वो डायग्राम आ गया, मद्रासियन है, एंड देन डिडवाना। तो उस तरीके से इंडियन साइट्स, मेनली इंडियन साइट्स ही पूछी जाती हैं। और उसमें फिर यूरोप अगर आता है तो अपर पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक इन यूरोप, तो उस पर एक एक पेज रख सकते हैं हम। PYQs अगर आप देखोगे तो उसमें वो आता है। साइट्स ज्यादातर इंडियन ही पूछी जाती हैं पेपर 2 में। अब तो पेपर 1 में भी वर्ल्ड तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, पेपर 1 में भी इंडिया चल रहा है। लास्ट ईयर मतलब 2-3 साल से पेपर 1 में भी इंडियन ही पूछ रहे हैं वो। सिमिलरली ऐसे ही हर एक के, मतलब दिस इज मतलब एक तो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लगता है, मतलब सब कुछ कवर हो गया, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने बड़ा हेल्पफुल रहता है। मतलब अब तो पहले तो ये होता था कि पेपर 2 में करना, अब ये तो पेपर 1 में भी रिवाइज करके जाना पड़ रहा है। बट पेपर 2 जब वो 1.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है बीच में, तो तब बहुत हेल्पफुल रहती हैं चीजें, क्योंकि पेपर 2 इज इन द आफ्टरनून, तो तब ये चीजें बहुत यूजफुल रहती हैं। वही नोट्स इस तरीके से हो गए। रिसोर्सेज आई हैव मेंशन, DK भट्टाचार्य सर बुक, एंड इग्नू, एंड वीडियोस DK भट्टाचार्य सर वीडियोस, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उसमें से कई बार कुछ चीज आप ऐड भी कर सकते हो अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, बट वो मोस्टली दैट इज इन द वो PDF में होता है वो EPG वाली। देन इसमें प्री हिस्टोरिक तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं, बट प्रोटो हिस्टोरिक इज व्हाट UPSC इज वेरी फोकसिंग ऑन दीज डेज। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस वैली और अदर सरस्वती सिविलाइजेशन, मेनी नेम्स आर कमिंग दीज डेज। सो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आर्यन इन्वेजन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस UPSC इज आस्किंग। दिस साल भी था प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस और राखी गढ़ी, एंड दैट वाज इन पेपर 1 आई फील।
सो ये भी उसमें आने लग गया है। पेपर 2 का भी वॉज आस्क्ड इन, हाँ दिस वॉज सेक्शन बी का 10 मार्कर्स, प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ राखी गढ़ी। सो इसमें आर्कियोलॉजी में जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज हैपनिंग नाउ दिस, देयर इज नो डिमार्केशन नाउ। तो आपको पेपर 1 में भी वही सारी आर्कियोलॉजी पढ़ के जानी है, बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन पेपर 1 ऑल्सो। क्योंकि पहले एक डिमार्केशन रहता था कि पेपर 1 इज सिर्फ वर्ल्ड आर्कियोलॉजी, पेपर 2 इज इंडियन, बट दैट इज नो लॉन्गर द केस। सो आर्कियोलॉजी अब दोनों पेपर्स का पार्ट है। तो प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस जैसे राखी गढ़ी कोई रिसर्चेज हैं, और उसमें एक आई थिंक वो रिसर्च सर ने शेयर भी करी थी, वो कुछ जीन जीन भी था, कुछ मिला था वो एक स्केलेटल से। तो उस तरीके से जस्ट मेंशन दोस थिंग्स। सिग्निफिकेंस तो हम जनरल लिखेंगे ही, मतलब राखी गढ़ी की मतलब जो लेटेस्ट एक रिसर्च आई थी, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट, मतलब ओल्डर देन मोहनजोदारो एज वेल। तो उस तरीके से, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, वो न्यूज़ में भी था। एंड सो जस्ट राइट दोज पॉइंट्स कि हाँ इस तरीके से कि मतलब वो पता लगेगा कि आप करंटली अपडेटेड हो, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, तो उस तरीके से। देन अगेन अभी इस साल एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस। अब इसमें तो हम कुछ ही पढ़ते थे, नर्मदा मैन हो गया, रामापति वगैरह, ये तो पूछते थे, बट इस साल उन्होंने और भी पीछे के फॉसिल्स पूछ लिए, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, मतलब वो छोड़ने वाला ही क्वेश्चन था। बिकॉज वी जनरली डोंट, मतलब अगर हम पढ़ते हैं कोई मटेरियल इग्नू या आई फील उसमें, तो उसमें देर इज मेंशन अबाउट इट, बट वी जनरली डोंट फोकस, क्योंकि एक बहुत साल पहले पूछा हुआ था क्वेश्चन, आई थिंक 1980s में क्वेश्चन पूछा था, जो लास्ट ईयर 2023 में वो दोबारा पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ज्यादा फ्रेट नहीं करना, वो एब्रेशन ही होती है। वी जस्ट गो बाय जनरल ट्रेंड। सर वो जैसे कहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया तो उसको नहीं करना, 2 से 3 बार पूछा गया है तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज वो एक बार वाला इज एन एब्रेशन, वो कुछ रैंडम आ जाता है कई बार, बट मेन फोकस इज शुड बी ऑन द जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो रामापिथिकस के ऊपर शिवापिथिकस, ये भी शिवापिथिकस भी आया था, आई रिमेम्बर। एंड इसमें मैंने गूगल करके एक रिसर्च उठाई हुई थी 2004 की, वशिष्ठा की थी, वो मैंने नोट्स में भी ऐड कर रखी थी, एंड दैट आई मेंशन्ड। और वो डिबेट के ऊपर क्वेश्चन था, और वो डिबेट था आई फील किसी इग्नू में था या कहीं पे था, या ऑनलाइन आई रेड अबाउट इट कि क्या डिबेट है दोनों का। सर भी डिस्कस करते हैं इसमें, सर में हाँ नोट्स में भी डिस्कस करते हैं, आई रिमेम्बर। तो वो नोट्स में था, एंड वो दैट वाज अ लो हैंगिंग फ्रूट, जो थोड़ा कई बच्चे कह रहे थे कि नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट। वो डिबेट हमें पता है कि क्या डिबेट है, हम पढ़ते हैं, बट उसको डिमांड उसकी वो थी, तो क्वेश्चन हमें फ्रेम उस तरीके से करना था, हम जनरल वो नहीं लिख सकते थे। तो फोकस वॉज टू बी ऑन द डिबेट, मतलब इंट्रोडक्शन लिख देते कि ये फॉसिल्स हैं इस तरीके से, बट वो डिबेट क्या है, दैट हैड टू बी द मेन फोकस ऑफ द आंसर। सो अगेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड वो थी, डिबेट शुड हैव बीन द फोकस। एंड एथनो आर्कियोलॉजी, एंड अब इसमें भी पुराने में रिपीट करूंगा, इसमें भी रिसेंट जो भी आता रहता है कुछ, नर्मदा मैन के ऊपर AR सांख्यन की 2018 की थी शायद रिसर्च, वो हो गई, या कुछ और भी लेटेस्ट आ रहा है। तो जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट, बिकॉज इंडियन है और इंडियन की कुछ अगर रिसर्च और भी हो रही है, तो वो अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली फेच मार्क्स। तो थोड़ा सा गूगल करते रहो, अगर कई बार नहीं भी आया, ग्रुप पे भी ऐसे आ ही जाता है ऑलमोस्ट, कुछ आया तो नहीं भी आया तो थोड़ा सा जस्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन इस तरीके से लेटेस्ट कर देंगे तो बेटर मार्क्स आ जाएंगे। और ये प्रेडिक्टेबल भी बहुत रहता है, मतलब ऑल्टरनेट ईयर है, एक साल रामापिथिकस या शिवापिथिकस आएगा, अगले साल नर्मदा मैन आएगा, तो दिस इज मतलब ऑलमोस्ट वेरी प्रिडिक्टेबल। तो वी कैन मतलब अच्छे से इसको फोकस कर सकते हैं, तो 10 से 15 मार्क्स हमारे आ सकते हैं इजीली। देन एथनो आर्कियोलॉजी, इसमें भी यूपीएससी फोकस कर रहा है काफी, 2-3 साल से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें भी आई थिंक नोट्स में भी है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज दी हुई हैं इसमें, व्हाट आर द सर्वाइवल्स एंड पैरेलल, मतलब जो लेटेस्ट इसमें भी रिसर्चेज हैं, कुछ पैरेलल ड्रॉ किए गए हैं कि जो करंट कम्युनिटीज हैं एंड व्हाट उस एरिया में अर्लियर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको कंपेयर किया गया है।
तो ट्राई टू फाइंड, अगर कोई सी नोट्स में है किसी उसमें है तो ट्राई टू ऐड देम। बाकी इसमें वो बेसिक आई थिंक वो कोया श्री हर्षा सर के नोट्स हैं, एथनो आर्कियोलॉजी में बेसिक तो वो है, प्लस लेटेस्ट अगर इसके ऊपर कोई रिसर्च है तो यू कैन ऐड दैट। थोड़ा सा गूगल कर लोगे, अगर मेरे पास भी एक दो है आई विल ट्राई टू शेयर इट। देन कम्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अब हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट कवर करते हैं पहले। इसमें भी लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, एथनिक एलिमेंट्स, अब इसमें भी एथनिक एलिमेंट्स पे भी काफी फोकस होने लग गया है, मतलब क्लासिफिकेशंस दे आर आस्किंग। सरकार क्लासिफिकेशन वी डोंट जनरली स्टडी, मतलब गुहा एंड रिजले वी स्टडी, बट वो इस साल सरकार वाली पूछ ली, हाँ वो कंपैरिजन पूछ लिया, तो वही दैट इज अगेन एन एबरेशन। तो आई फील बट स्टिल अगर आ गया है तो जस्ट ट्राई टू ऐड इट, एक पेज के नोट्स उसमें भी बना लो, क्योंकि एक पेज का इसलिए हमारे पास ऑलरेडी एक गुहा एक सरकार और बना लो, क्योंकि अगर शायद रिपीट हो जाए इस साल ना तो अगले साल हो जाए, तो दैट हैज टू बी एडेड। और अगर आई थिंक पूछा गया होगा तो किसी सोर्स पे होगा, इग्नू में या उसमें होगा, वो दैट जनरली गेट्स मिस्ड बाय अस, बट वो किसी उसमें होगा। जैसे सेकुलर ट्रेंड्स भी देयर वाज इन ईपीजी पाठशाला के पर्टिकुलर टॉपिक था, पूरी पीडीएफ है उसके ऊपर, सेकुलर ट्रेंड्स के ऊपर जो क्वेश्चन आया था 2020 में। तो इस तरीके से कई बार मिस हो जाती है कोई चीज, बट वो होती है, तो ट्राई टू फाइंड इट एंड जस्ट मेक वन पेजर आउट ऑफ इट। देन इंडियन सोशल सिस्टम, वो डायग्राम्स, सर के डायग्राम्स है वो तो डेफिनेटली जाएंगे क्वेश्चंस में। कर्मा वो सर्कल वाला है, पुरुषार्थस हैं, वर्णाश्रम, कर्मा, ऋणा, रीबर्थ, इसमें भी वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। कोरिलेशन आने लग गया थोड़ा, कर्मा एंड रीबर्थ जैसे वाज अ क्वेश्चन, आई थिंक दैट आल्सो गॉट रिपीटेड, तो उसमें थोड़ा फिलोसफिकल एंगल इसमें ऐड कर सकते हैं। एस राधा कृष्णन हो गए, उस तरीके से जो स्कॉलर्स हैं वो थोड़े से हम इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर, मतलब ये थोड़ा सा आई गेस इट लैप्स विद द इंडियन फिलोसफी वाला पार्ट से, तो वो चीजें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, एक दो लाइंस मतलब स्कॉलर ऐड कर देंगे, तो वो हमारा आंसर को थोड़ा डिफरेंशिएट कर देगा इसमें। सोर्सेज बाकी इसमें प्रिंटेड नोट्स हैं, आई रेफर्ड। देन कम्स द कास्ट सिस्टम एंड दिस टॉपिक आई फील इज मतलब बहुत डायनेमिक हो रहा है आजकल, मतलब पहले इट वाज वेरी सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बट इसमें से काफी डायनेमिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो इसमें व्हाट आई फील इज वी कैन इसमें स्कॉलर्स कोड करना इज गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट स्कॉलर्स हैं। सो दैट आई पिक्ड फ्रॉम टॉपर्स नोट्स, वसीम अहमद भट्ट सर की कॉपीज थी, द्विज गोयल सर, तो इनके नोट्स थे, तो इसमें से पिक करो। एंड इसमें आई फील कि लेटेस्ट स्कॉलर्स को कोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो फेचेज मोर मार्क्स। सो लाइक दीपांकर गुप्ता सर हैं, तो उनको जैसे उनकी कास्ट के ऊपर जो रिसर्च है उसको टॉपिक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कोट करो। एंड देन सुरेंद्र जोत का सर हैं, तो इस तरीके जो लेटेस्ट स्कॉलर्स हैं, मतलब वो सोशियोलॉजी के साथ थोड़ा ओवरलैप करते हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो मेरा एक फ्रेंड था सोशियोलॉजी वाला, तो उसके साथ मैंने डिस्कस करके थोड़ा सा आई यूज टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को, हम मतलब हमारा एक टॉपिक है तो, बट ये टॉपिक बहुत वास्ट होता जा रहा है, मतलब बहुत डिटेल में यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दीज, तो फोकस मतलब ट्राई टू ऐड दीज थिंग्स, मतलब ये टॉपिक्स तो कवर करने हैं। पीवाईक्यूज जो लेटेस्ट पूछ रहा है उस पे ऊपर बनाओ, जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया उस तरीके से, मतलब वो काफी मतलब इट्स गोइंग, मतलब वो टॉपिक है नहीं, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ सिलेबस में, बट उसका मतलब वो ज्यादा पूछ रहा है, मतलब यूपीएससी इज गोइंग इनटू द मतलब कास्ट सिस्टम, कास्ट मोबिलिटी, फ्यूचर ऑफ द कास्ट सिस्टम एक टॉपिक है, बट वो सारा फ्यूचर मतलब फ्यूचर के अंडर ही आ जाता है कि व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग या हाउ विल इट शेप द सिनारियो। फिर पॉलिटिक्स भी मतलब वो जो हम पढ़ते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स थोड़े इस टॉपिक में हेल्प करते हैं। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, मतलब सर भी बताते रहते हैं, मंडलाइजेशन हो गया या उस तरीके से, ये सारे कीवर्ड्स इस टॉपिक में हेल्पफुल हैं। प्लस स्कॉलर्स, सो ट्राई टू रीड स्कॉलर्स, अभी तो नहीं टाइम, बट इफ यू गेट द टाइम आफ्टर मेंस, सो आई थिंक कि कुछ बुक्स भी पढ़ लेना, एक दो, थोड़ी सी मेंस के बाद तो फ्री हो, अभी नहीं, मेंस के बाद डेफिनेटली पढ़ लेना। वो सर, वो देखो सर ने भी नई बुक एक
अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ी, आई डेफिनेटली रीड दिस। अच्छा, थैंक यू सर। तो ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब आफ्टर मेंस एक तो पढ़ाई के लिए, बट वैसे भी मतलब इफ यू आर वी आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वी शुड रीड मोर अबाउट इट, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये जो स्कॉलर्स कह रहा हूँ मैं, दीपांकर गुप्ता सर, सुरेंद्र जोत का सर, अभी तो सर ने भी लिख दिया, तो ट्राई टू रीड दिस बुक्स, सो इट विल हेल्प यू शेप मतलब एक ओपिनियन या क्या इश्यूज हैं, कैसे वो है, मतलब पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है, उस तरीके से सम ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत वो है दैट मतलब आप आंसर कर पाओगे उस तरीके से। देन सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एंड नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स अगेन सर के नोट्स में है एंड वेरी स्टैटिक, इसको अच्छे से करो, बट इसमें भी वो 2019 में शायद पूछ लिया था, अदर स्कॉलर्स का भी पूछ लिया था, BN सरस्वती सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पूछ लिया था उस तरीके से, तो और वो भी पढ़ लेना, मतलब एक दो वो आई गेस टॉपर्स नोट्स में है, वहां से उठा लेना, ज्यादा नहीं, कई बार मतलब थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो, मतलब कई टॉपिक ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमें पूरा 4 बुक्स पढ़े हम या वो उसमें से ढूंढे, कई बार वो मतलब टॉपर्स जो नोट शेयर करते हैं उसमें ये मिल जाता है, जैसे मतलब मैंने नारायण अमित सर के नोट्स बहुत रेफर करे, एंड देन अभी लास्ट ईयर लगिमा तिवारी जी वाज वन ऑफ द टॉपर, तो उनमें से उनके नोट्स जो थे उन्होंने शेयर करे, उसमें से कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स जैसे सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ अदर स्कॉलर्स, वो मैंने एक एक पेज का उठा लिया था वहां से, सो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा वी कैन वर्क स्मार्टली ऑल्सो, मतलब हमें पूरा नहीं पढ़ना, बट जो टॉपिक्स हमें लग रहा है कि हमारे नोट्स में कमी है तो वो हम वहां से उठा सकते हैं। देन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये तो है पता है हमें, सर भी लिस्ट देते हैं प्लस PYQs के हिसाब से हर एक के ऊपर हमें चाहिए, वेरी रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साल भी क्वेश्चन आया था, सो वो हमें SC रॉय जी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो वो रिपीट होते रहते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, वही मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो उनके ऊपर हमारे 15 मार्कर तो रेडी होना चाहिए, मतलब बट इसमें भी थोड़ा सा व्हाट आई फील कि इसमें भी थोड़ा सा यू कैन गो वेंचर इनटू थोड़ा सा डिटेल की, मतलब वही जैसे अभी पेपर 1 में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द मेलिनोस्की और उनका क्या वो है क्रिटिसिज्म या मतलब कंट्रोवर्सीज क्या है, उस तरीके से अगर इनकी भी कोई कंट्रोवर्सी है उस तरीके से कुछ है, तो आई थिंक कि वो भी आने वाले टाइम में वो पेपर 2 में भी वो चीज इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से भी पूछ सकते हैं वो चीज, अगर कुछ ऐसा है, अगर इफ यू फाइंड समथिंग इन द बुक, तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी उपाध्याय गया पांडे में है आई फील, इंडियन स्कॉलर्स या और इग्नू में भी है, तो वहां से यू कैन पिक दीज, या गूगल भी करोगे उसमें भी आई फील मिल जाएगा, मतलब वो समरी एक PDF शेयर करते हैं, अभिजीत अभिजीत घोष प्रोफेसर हैं, उनकी है स्कॉलर्स के ऊपर, तो वहां से यू कैन पिक। देन इंडियन विलेज, सो ये भी काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक है, अगेन जैसे 3.2 की तरह, तो इसमें भी काफी लेटेस्ट स्कॉलर्स ट्राई टू कोट कि हाउ विलेज इज चेंजिंग, अब इसमें भी स्टडीज हैं, इसमें भी आई मतलब वसीम अहमद भट्ट सर के उसमें से मैंने काफी कुछ उठाया था इसमें, मतलब उनके टेस्ट कॉपीज उन्होंने शेयर करी थी, बट उसमें से काफी कुछ उन्होंने स्कॉलर्सली वसीम अहमद भट्ट सर लास्ट ईयर 7 थे, तो उन्होंने काफी इसमें स्कॉलर्स कोट कर रखे थे विलेज में, विलेज वाले क्वेश्चंस में, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज इन योर नोट्स एंड ट्राई टू कोट देम, तो जनरली आंसर हम लिखते हैं सारा कि मतलब क्या है, बट स्टिल अगर हम एक स्कॉलर कोट करेंगे, मतलब इसमें हमें बड़ा जनरल सा टॉपिक लिखता है, बट इसको भी वी हैव टू कोट स्कॉलर्स इन दिस। देन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, अब इसमें भी लेटेस्ट डेटा ऐड कर सकते हैं, लेटेस्ट स्कीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्या है माइनॉरिटीज के लिए, उस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो दैट विल हेल्प, मतलब पेपर 2 थोड़ा सा इंडियन उस परस्पेक्टिव से अगर हम जाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो वी कैन कोट देम, जैसे ट्राइबल्स में भी हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, इस टॉपिक में भी वी कैन डू कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द माइनॉरिटीज, उस तरीके से वी कैन ऐड। देन प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, संस्कृताइजेशन इस बार भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो इस साल क्वेश्चन था संस्कृताइजेशन, दैट वाज नॉट जस्ट राइट ऑन संस्कृताइजेशन, इट वाज थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल पे था, तो जैसे सर समझाते हैं थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, या किस तरीके से
क्योंकि इस साल का क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करना, ट्राई टू राइट इट डाउन, 20 मार्क का था एंड देन डिस्कस इट विद सर ऑल्सो। तो उस तरीके से थोड़ा सा, बिकॉज इन टॉपिक्स में ना थोड़ा आई फील कि यूपीएससी इज मूविंग अगेन, पेपर 2 में भी थोड़ा इट इज मूविंग इनटू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और हो इन टॉपिक्स के ऊपर। सो ट्राई टू डिस्कस एंड ट्राई टू, मतलब जो बेसिक तो है ही इन टॉपिक्स पे, बट ट्राई टू गेन अनदर डीप पर्सपेक्टिव्स ऑन इट। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिटिल ग्रेट ट्रेडिशंस, मतलब इनमें तो फिर भी ठीक है, मतलब इसमें भी क्वेश्चन आ गया था लेटेस्ट क्या इंटरप्ले हो रहा है लिटिल एंड ग्रेट, 2019 में एक क्वेश्चन था। तो उससे किसी करंट ओरिएंटेड, मतलब ये सब देज आर जो रिसर्चेस हैं काफी पुरानी रिसर्चेस हैं, 50-60s की हैं, तो इसको थोड़ा सा भी लेटेस्ट एप्लीकेशन या लेटेस्ट क्या हो रहा है इस फील्ड में थोड़ा सा वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो 2019 में जैसे लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो उस तरीके से थोड़ा सा जो आसपास चीजें ऑब्जर्व, थोड़ा ट्राई टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम दिस लेंस ऑल्सो, कि कौन सा लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन इंटरेक्ट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आज ही सोच रहा था, मैं अभी आ रहा था, अब जो पहले लगती थी छबील या पानी मिलता था ठंडा, वो जनरली नॉर्थ इंडिया पंजाब वगैरह वाली साइड था ट्रेडिशन, बट वो काफी इधर अभी ईस्ट इंडिया में भी जा रहा है व्हाट आई फील, मतलब सेंट्रल इधर सब जगह ही जा रहा है कि मतलब वो सेवा भावना, मतलब वो बेसिकली, मतलब दैट इज बेसिकली इंटरेक्शन ओनली ना, तो वो फैल रही है वो चीज, मतलब बेसिकली। तो उस तरीके से देन पंचायती राज, सोशल चेंज, इसमें भी यू कैन कोट एग्जांपल्स लेटेस्ट की, कैसे वेयर, जैसे एक अहमदनगर में शायद एक गांव था, उसमें काफी अच्छा पंचायत ने काम किया, काफी रिवैम्प कर दिया पूरे विलेज को। तो इस तरीके से इसमें मतलब ये करंट वाले टॉपिक्स हैं थोड़े, इसमें मतलब थोड़ा जीएस टाइप लगेगा, बट इसमें क्या है कि इसमें अगेन सोशल चेंज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सोशल चेंज की डेफिनेशन एक स्कॉलरली डेफिनेशन कोट कर दो पहले, तो आपका थोड़ा ऑप्शनल वाला आंसर बन जाएगा। फिर नीचे जो पंचायती राज कैसे उसको ला रहा है, जैसे विमेन अपलिफ्टमेंट हो रही है, कुछ क्लाइमेट को कैसे डील कर रहे हैं, क्लाइमेट नहीं सॉरी, मतलब विमेन अपलिफ्टमेंट कैसे हो रही है, बैकवर्ड क्लासेस को कैसे डील कर रहा है, कैसे अपलिफ्ट कर रहा है, तो उस तरीके से वो एग्जाम्पल्स हम लेटेस्ट कोट कर सकते हैं। सिमिलर मीडिया एंड सोशल चेंज, इसके ऊपर भी काफी थोड़ी स्टडीज हैं कि जैसे टीवी जब आया तो कैसे चेंज हुआ, रूरल इंडिया कैसे चेंज हुआ, तो वो कुछ स्टडीज यू कैन कोट, मतलब यू कैन गूगल इट। तो मीडिया, टीवी के आने से, सेल फोन्स के आने से कैसे क्या सोशल चेंज आया, इसके ऊपर काफी रिसर्चेज हैं, तो एक दो यू कैन सी इट, बाकी आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर इट। So this is main about Indian anthropology. Main तो इसमें archaeology is the main focus should be there. काफी heavy weightage रहती है इसमें, काफी significant है। एक जो चीज रह गई थी आईबीसी में, try to keep up with the latest वो researches and उसमें try to focus on कि हमारा perspective of Indianization जो हम Indian perspective से पढ़ रहे हैं, the latest researches which is going on, कि बिकॉज आईबीसी जो बेसिकली एक जो इम्पोजिशन था दैट वाज कॉलोनियल इम्पोजिशन, मतलब जो कि कहा जाता है दैट इज डिबेटेबल। सो उस तरीके से जो लेटेस्ट इसमें जो दूसरा पर्सपेक्टिव आ रहा है, सो वो भी ट्राई टू रीड दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि उस पे ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आर्यन डिबेट ऑन आर्यन इन्वेजन हो गया या उस तरीके से। देन दिस वाज एक वो क्वेश्चन था कि प्री आईबीसी साइट्स, सो वो भी 2022 में था शायद, क्वेश्चन 21 में था। तो बेसिकली मतलब कि आईबीसी इज एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन, जैसे कि वो वही आर्यन इन्वेजन की ही एक्सपेंशन था वो क्वेश्चन, कि इंडिजीनियसली पहले ही यहाँ पे एक सिविलाइजेशन ऑलरेडी प्री आईबीसी एग्जिस्ट करती थी, तो उसके ऊपर कौन सी साइट्स थी वो आई थिंक आई रेड दैट इन वन पीडीएफ, मतलब वो क्वेश्चन जब आया था, सो जब मैंने वो पीवाईक्यू के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो उसके ऊपर मुझे मिल गया था काफी कंटेंट, मतलब एक 15 मार्कर मैंने उसके ऊपर बना लिया था, 15 मार्कर जितना आंसर। तो उस तरीके से ट्राई टू फ्रेम द आंसर्स एंड कीप अप विद द लेटेस्ट रिसर्चेस जो भी न्यूज़पेपर में आ रही हैं, सर शेयर करते रहते हैं। आईबीसी सर का भी फेवरेट टॉपिक है, सर उसके ऊपर वीडियोस भी बनाते रहते हैं, तो ट्राई टू वॉच दीज, बिकॉज इसके ऊपर उस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं अब। Then again एक टॉपिक रह गया था 3.4, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी। ये भी ऑलमोस्ट स्टैटिक टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, सो यू कैन प्रिपेयर 10-15 मार्कर ऑन दिस। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ वैल्यू एडिशन आई डोंट थिंक देयर इज मच यू कैन डू, बिकॉज
पुराना इम्पैक्ट ही जो हमें बताना है. Then I think we are done with Indian anthropology. Main focus इसमें again summarize करूँ तो 3.2 topic and 5.1, 5.3 topic ये main जो crucial topics हैं इसमें, and try to add scholars in this, latest scholars थोड़ा सा इनको कोट करने की इसमें कोशिश करूँ, so that will be helpful and that will give the result that you will see मतलब yourself कि वो dividend देता है वो चीज. And then coming to the tribal anthropology part, so इसमें the sources I referred was again Nadeem Hassan's Tribal India, and इसमें government websites, Ministry of Tribal Affairs की website, that is important. उसकी एनुअल रिपोर्ट, मोटा की एनुअल रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. एंड अगेन जो केस स्टडीज आती रहती हैं शेयर करते रहते हैं सर, प्लस योरसेल्फ इफ यू फील कि कुछ और ऐड करना चाहिए. इसमें बहुत सारे न्यूज़ डेली आती रहती है ट्राइबल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल FRA एंड ट्राइबल्स या कुछ और तरीके से, विमेन कंडीशंस, ट्राइबल विमेन की कंडीशंस, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारी डेली न्यूज़ आती रहती हैं, मंथ मैगजीन्स में आती रहती है. ट्राई टू पिक अप फ्रॉम देयर लिंक्स, सर कीप ऑन शेयरिंग. तो इसमें दिस इज वेरी, वो सर कहते हैं कि मतलब ये लगता बहुत छोटा टॉपिक है बट सबसे वास्ट यही है, बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग. मतलब यू कॉन्स्टेंटली हैव टू ऐड एंड अपडेट. ये इट इज दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक, इट्स नॉट अ स्टैटिक टॉपिक, बिकॉज में कोई लेटेस्ट डेटा जितना हम लेटेस्ट कोट करेंगे दैट बिकम्स हेल्पफुल. बट इसमें अगेन वो TNC अप्लाइज की ज्यादा लेटेस्ट के पीछे भी मत भागो. एटलीस्ट 1 साल का है, 2023 का भी है, यू कैन कोट दैट. यही नहीं कि 2024 में दे रहे हो तो 2024 का ही चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, मिल नहीं रहा, स्टिल ढूंढ रहे हो. डोंट वेस्ट टाइम. एक टाइम के बाद ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन, ऑप्टिमाइज योर एफर्ट्स, एंड 2023 तक उतना भी डेटा है, 2020 किसी पार्ट का 2022 का भी डेटा है, तो यू कैन ऑल्सो कोट दैट. तो इसमें प्रॉब्लम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वही मेन जो है लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी, इस सब पे डिटेल्ड, मतलब 1 पेजर 2 पेजर ट्राई टू मेक इट. एंड इसमें केस स्टडीज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है इशू, क्या है, व्हाट इज द लैंड एलिनेशन इशू. देन इसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के ऊपर डेटा क्या है, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंट, मतलब हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट प्रॉब्लम. कैसे इंडेटेडनेस के ऊपर एक डेटा मुझे मिला था कि दिस मच परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल्स, मतलब एक रिसर्च थी कि आर इन डेट, मतलब परपेचुअल डेट उस तरीके से, तो वो डेटा आ गया. एंड देन व्हाट इज द कॉज ऑफ इट, ये भी मतलब फ्रेमवर्क सर बताते हैं. उसमें कॉजेस क्या हैं, उसमें कॉजेस ट्राई टू असर्टेन, मतलब वो जो सारे कॉजेस हैं उसको नोट्स में होने चाहिए हमारे. एंड देन कम्स द व्हाट इज द सोल्यूशन, मतलब क्या सोल्यूशंस है. अब सोल्यूशंस में भी मतलब एक तो वो है, सोल्यूशंस आर रेकमेंडेड बाय सम कमेटी, खाका कमेटी या उस तरीके से जो कमेटीज हैं वो रेकमेंडेड है. प्लस नई सोल्यूशंस आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर या न्यूज में जो आते हैं. जैसे एक फेसबुक का था, गोल इनिशिएटिव था फॉर द ट्राइबल बच्चों के लिए टूवर्ड्स दिस, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, उनको स्किल्स एनहांस करने के लिए, तो उस तरीके से वो सोल्यूशन आ गया. प्लस एक आधा सर ऑलवेज है कि एक सोल्यूशन आप अपना ऐड कर दो कि व्हाट यू थिंक, मतलब अपना. बट मुझे आज तक टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कम समझ आया, तो मैं जो कोई और सोल्यूशन होता था उसको थोड़ा सा मोल्ड करके अपना बना लेता था. बेसिकली वो ये है कि दैट शुड बी यूनिक, मतलब वो जो सेंटेंस आप लिख रहे हो तो वो थोड़ा सा आप मतलब आप डिफरेंट टच देना चाहिए. मतलब वो लाइन रेपिटेटिव नहीं लगनी चाहिए. वो 10 कॉपीज आ रही हैं, 10 कॉपीज में वही सेम लाइन आ रही है. थोड़ा सा आप मतलब वो यू फील फॉर द, मतलब यू फील द इशू, यू वांट टू मतलब सॉल्व दैट इशू, तो उस तरीके से एक पॉइंट वी कैन ऐड दैट. सो इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड द डेफिनेशन, एंड मतलब कि क्या है, जैसे लैंड एलिनेशन क्या है, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, उस तरीके से एक डेफिनेशन हो गई उस इशू के ऊपर.
देन डेटा आ गया, व्हाट इज हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट इशू, कॉजेज आ गए. अब कॉजेज में भी व्हाट वी कैन डू इज कि कॉजेज में भी वी कैन कोट द एग्जांपल्स. लाइक केस स्टडी स्पेसिफिक लिखने की तो है ही बात, अगर इफ यू वांट टू राइट इट, बट यू कैन राइट द केस स्टडीज एज एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल कि लैंड एलिनेशन के ऊपर था, तो एक केस स्टडी थी मेरे पास कि हाउ मेनी ट्राइबल फैमिलीज हैव बीन, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया से डिस्प्लेस की गई. तो एक जो कॉज था कि बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, या उस तरीके से मतलब डेवलपमेंट इंड्यूस्ड या इफिक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो वो पॉइंट लिखा एंड आई कोटेड दैट एज एन एग्जांपल. मतलब केस स्टडी को एज एग्जांपल लिख दो, मतलब क्योंकि हमारे पास 3-4 होंगे इस टॉपिक पे, कुछ को एग्जांपल लिख दो, कुछ को अगर केस स्टडी अलग से बना के आपको लिखना है मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. बट वो जब पॉइंट लिखते हैं और साथ में एग्जांपल की तरह लिखते हैं तो वो एकदम हिट करता है, वो काफी रेलेवेंट लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड अगेन इसमें भी जो कॉजेज हैं इसमें थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट बना सकते हो कि हाउ मेनी इश्यूज आर लिंक्ड. तो वो सर एक डायग्राम बनवाते हैं, या यू कैन उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, आपको जो भी लिंकेज लगता है पढ़ के लगता है कि हाँ, या उसको छोटा करना है या और कुछ ऐड करना है, तो यू कैन डू दैट. देन सॉल्यूशंस, recommendations, and then one conclusion you can write. मतलब वो भी स्कॉलरली BD शर्मा सर का है, उस तरीके से यू कैन राइट, या कुछ लेटेस्ट इनिशिएटिव से कंक्लूड कर सकते हो कि आपकी यहाँ इस तरीके से ये इशू, मतलब इट्स ऑन यू. स्कॉलर से भी कर सकते हो या लेटेस्ट कुछ एग्जांपल को बना के भी कर सकते हो, या व्हाट, मतलब जो भी अच्छा, मतलब पॉजिटिव वो होना चाहिए, मतलब वे फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए. So this was about tribal problems 6.2. और similarly 6.3 में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वही, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ वही, कि हाउ स्पेसिफिक वो आ जाएगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से कैसे हो रहा है. एंड आई थिंक इस बार क्वेश्चन था कि हाउ इट इज स्पेसिफिकली इफेक्टिंग द वुमेन, हाउ डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट या उस तरीके से स्पेसिफिकली इफेक्टिंग द ट्राइबल वुमेन. सो उस तरीके से भी ऑलमोस्ट, टू बी ऑनेस्ट, इसके कुछ स्पेसिफिक कंटेंट तो नहीं था मेरे पास, बट मेजर जो ट्राइबल वुमेन के ऊपर कुछ मैंने बनाया था, तो उन दोनों को कोरिलेट करके आई फ्रेम दैट आंसर. सो दैट्स हाउ, मतलब ऑन द स्पॉट यू कैन डू दैट. मतलब क्योंकि 2-3 टॉपिक्स पे था कि ग्लोबलाइजेशन से या उस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है ट्राइबल वुमेन के ऊपर, मतलब वेरियस टॉपिक्स के ऊपर जो था, दैट आई कोलेटेड इन वन आंसर. प्रॉब्लम्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पॉलिसीज हैं, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2007 जो है, उस तरीके से ट्राई टू हैव नोट्स ऑन इट. इसमें यू कैन ऑल्सो रेफर टू अक्षय जैन सर बुक, थोड़ा सा मतलब टॉपिक्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या कवरेज करना है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दैट. Then problems and exploitation, deprivation of SC, STs, OBCs. This is also again a topic. मतलब इसमें लेटेस्ट डेटा कोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी लेटेस्ट रिसर्चेज आती हैं इसमें, वेबसाइट्स यू कैन रेफर. अब इसमें अगेन जैसे वो वाला मैनुअल्स का एवेंजिंग इज एन इशू, तो उस तरीके से वी कैन कोट दैट एज एन एग्जांपल. उसका डेटा कोट कर सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड, मतलब स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. Then constitutional safeguards तो वही है, सेम है, just you have to remember that. 7.2 impact of modern democratic institutions, मतलब ये भी वही, how पंचायती राज and is affecting the tribal institutions, या elections, या उस तरीके. मेनली पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आया PYQs में, इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर. सो उसमें भी एग्जांपल्स हैं कि हाउ पिछले साल भी एक पर्टिकुलर जो काउंसिल्स हैं दैट आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द लेटेस्ट डेमोक्रेटिक पंचायत से, उस तरीके से, मतलब जो ट्रेडिशनल काउंसिल्स थी वो दे आर गेटिंग रिडंडेंट एंड पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक, मतलब पंचायत, मतलब ट्राइबल एरियाज में भी उस तरीके से. देन अगेन वेलफेयर मेयर्स, अब इसमें भी लेटेस्ट जैसे बहुत था इस साल, मतलब मुझे काफी एक्सपेक्टेड था PBTGs के ऊपर क्वेश्चन है, अगले साल भी आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बीइंग वेलफेयर मेयर्स बीइंग टेकन स्पेसिफिकली फॉर PBTGs. PM जनमन वो है योजना, एंड अदर schemes are coming, so that have to be mentioned in such kind of questions कि what, yeah,
मतलब एक तो what I feel is solution recommendations and what you can मतलब policy measures that are being taken. You can also make a separate heading for that. What policy measures are being taken. So that will also give you मतलब कि आप you think from that perspective, you are aware and you are following you're following it continuously कि what government is doing. So that heading you can also make. Pros and cons नहीं लिखने ना हमें सोच मतलब what मतलब this जो उसका अच्छा पॉइंट है वो तो डेफिनेटली बिकॉज वी आर राइटिंग एज अ सोल्यूशन की व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन अगर स्पेसिफिकली बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर मेजर्स ऑन ट्राइबल्स तो एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि आई फील कि हाउ दे आर लैकिंग या व्हाट इज मतलब कहाँ लैक कर रहे हैं तो उस क्वेश्चंस में हमें स्पेसिफिकली लिखना है बट मैं उसको जो जनरल प्रॉब्लम्स है उसमें व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग उसमें कोट करने की बात कर रहा था पहले इसमें तो एक ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ पॉलिसीज आर मतलब वेयर दे आर लैकिंग या उस तरीके से कहाँ शॉर्ट कमीज है या व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव अपॉन देम इसमें भी PYQs हैं इसके ऊपर तो वो भी हमें प्रिपेयर करना है देन एथनिसिटी टॉपिक इज देयर सो इसमें भी यू कैन रीड सम सोर्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए EPG पाठशाला पे है आई गेस एथनिसिटी के ऊपर सो इस पे यू कैन रीड इट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स रीजनलिज्म अगेन थोड़ा GS से ओवरलैप करता है बट इसमें ट्राई टू थोड़ा सा कोट सम स्कॉलर्स MN श्रीनिवासन का जो कुछ है रीजनलिज्म या कॉम्युनलिज्म के ऊपर तो ट्राई टू कोट सम स्कॉलर्स क्योंकि ये थोड़े GS टाइप आंसर्स हो जाते हैं रीजनलिज्म कॉम्युनलिज्म एंड ये जो इश्यूज हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्राई टू कोट स्कॉलर इस कॉम्युनलिज्म पे भी कुछ स्कॉलर्स हैं हिस्ट्री के हैं शायद कुछ स्कॉलर्स तो यू कैन कोट एक दो वो भी मैंने टॉपर्स कॉपी से उठाए थे तो टॉपर्स नोट से एक दो तो वही यू कैन पिकअप फ्रॉम देयर उस तरीके से अगेन इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी इस्लाम अदर रिलीजन ऑन ट्राइबल सोसाइटीज तो पर्टिकुलर ट्राइबल्स को कैसे इफेक्ट किया इस पे केस स्टडीज भी हैं जैसे लीला दुबे जी की है इन लक्षद्वीप तो उस तरीके से मतलब पुरानी है वो वी कैन कोट दैट मतलब वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन टॉपिक्स पे ट्राइब एंड नेशन स्टेट मतलब बेसिकली कंपैरिजन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया बेसिकली वेरी लेस इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक बट एक मतलब प्रिपेयर वी कैन कर सकते हैं मतलब कि मेजर जो US हो गया मतलब वहाँ पे इंडिजीनियस कम्युनिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है उस तरीके से सो जस्ट ट्राई टू रीड अबाउट दैट मतलब कि हमारे यहाँ ट्राइबल हमारे यहाँ इंडिजीनियस कम कहते हैं उस तरीके से सो क्या डिफरेंस मतलब व्हाट आर द पॉलिसी differences मतलब कि how we approach towards tribal development and how other countries approach towards मतलब indigenous या tribal development so वो एक comparison we can notes बना सकते हो उस पे then 9.1 history of administration in tribal areas मतलब colonial era में क्या था what is changing now ये भी question I think इस साल का आया था कि what changes colonial era से हुई हैं इस पर in tribal policies so colonial era में क्या था we know how far we have come from independence to how different policies have been changed तो वो सारा एक chronological framework और उसके ऊपर हर एक points कि हर एक क्या क्या policies अपनाई गई थी time to time so वो हमारी ready होनी चाहिए then again programs of tribal development again repeat कर रहा है then इसमें clearly क्योंकि दिया भी हुआ है concept of PTGs that earlier PTGs था that is now PVTGs so that's why it becomes more important because government is doing specific schemes are coming तो news में भी है और हमारे syllabus में भी है तो इस तरीके से also we can मतलब थोड़ा सा prepare it कि हाँ इसके चांस हैं आने के स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट अब क्लियरली सिलेबस का टॉपिक ही लिखा हुआ है और प्रोग्राम्स आ भी रहे हैं सो वी डेफिनेटली हैव टू कोट देम देन रोल ऑफ NGOs इन ट्राइबल डेवलपमेंट अब इसमें भी थोड़ा सा द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड स्पेसिफिक थोड़ा सा रोल ऑफ NGOs इन ट्राइबल वुमेन थोड़ा सा इसमें जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर थोड़ा सा वास्ट एक तो NGOs का जनरल हो गया जिसमें वी कैन अगर जनरल क्वेश्चन आएगा तो जस्ट राइट एक एक पॉइंट हमारा बन जाएगा ऑन वुमेन on tribal health, on tribal education, on nutrition इस तरीके से we can quote 6-7 points with examples. But कई बार specific question भी आ जाता है so try to prepare specific.
थोड़ा सा एक एक पेज थोड़ा प्रिपेयर कर लेना कि हाउ एनजीओज आर वर्किंग फॉर ट्राइबल वुमेन, हाउ एनजीओज आर वर्किंग फॉर ट्राइबल हेल्थ, ट्राइबल एजुकेशन। जैसे ट्राइबल हेल्थ में अपनी रिपोर्ट भी है, हम फॉरगेटिंग द नेम, बहुत रिनाउंड एनजीओ है, बहुत रिनाउंड स्कॉलर है, उनकी रिपोर्ट भी है, एंड बांग रिपोर्ट। सो उनका ट्राइबल हेल्थ के ऊपर काफी वो है। सो उस तरीके से एक एक पेज ट्राई टू प्रिपेयर इट, बिकॉज क्वेश्चन अगर आप ईवीक्यू देखोगे तो वो जनरल तो पूछते ही थे पहले, बट वो थोड़ा स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। 2021 या 2 में आया था ट्राइबल वुमेन के ऊपर कैसे हेल्प कर रहे हैं एनजीओज। तो इस तरीके से एक एक पेज ट्राई टू प्रिपेयर ऑन इट, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू। अगर जनरल क्वेश्चन आ गया तो आपका एक इतना अच्छा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, यू आर कोटिंग, मतलब क्लियर पॉइंट्स यू आर राइटिंग, हाउ फॉर दिस, हाउ फॉर दिस, हाउ फॉर दिस, विद एग्जांपल्स, विद केस स्टडीज। तो मतलब 15 मार्क का अगर जनरल भी आ गया तो डेफिनेटली यू विल गेट 10 मार्क्स, मतलब इतना अच्छा आंसर बन जाएगा वो। देन रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, अगेन इसमें वी नो, मतलब वो फर्स्ट पेपर से जब हम पढ़ते हैं कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इन जनरल, और ट्राइबल डेवलपमेंट में तो हम पूरा पढ़ेंगे कि हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं, बाहर के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं। एंड रूरल डेवलपमेंट में भी देयर आर वेरियस स्टडीज दैट हैपेंड। जैसे अब इसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम देखोगे तो एससी दुबे की एक विलेज स्टडी थी यूपी में, जब उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, तो जब वो नहीं वर्क कर रहा था तो उनको बुलाया गया था उसको स्टडी करने के लिए। तो दैट, फॉर एग्जांपल, दैट एग्जांपल यू कैन कोट हियर कि हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन वर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट, या कैसे वो स्टडी करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं। इसमें फिर वो पेपर 1 के भी आप हम चीजें कोट कर सकते हैं कि अप्लाइड एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी वाले वो कीवर्ड्स वी कैन यूज इट। इंटरलिंकेज थोड़ी सी कर सकते हैं हम इसमें। एंड अगेन 9.3 टॉपिक कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, अगेन थोड़ा सा जीएस टाइप आंसर बनेगा, बट ट्राई टू कोट सम स्कॉलर्स ऑन दिस, जैसे एम एन श्रीनिवास या उनका मतलब यूनिटी के ऊपर, या उस तरीके से जो भी स्टडीज हैं, जो भी उनके सेइंग्स हैं, वी कैन यूज देम। बाकी बेसिक इस टॉपिक्स के लिए अक्षय जैन सर की बुक यू कैन रेफर, ये 9.3 जैसे टॉपिक हो गया, बट इसमें दैट इज जस्ट द बेस, यू कैन यू हैव टू ऐड सम स्कॉलर्स फ्रॉम इंटरनेट और फ्रॉम टॉपर्स कॉपी या नोट से, ट्राई टू फाइंड देम एंड ऐड इट। सो दिस इज बेसिकली, अगेन थोड़ा समराइज करके, अगेन एक जो चीज रह गई थी इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज भी मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में यू कैन डू, आई फील, मतलब नॉट एवरी टॉपिक आई फील इंटरलिंकेज हो सकती है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 की, बट जहाँ भी जब हम रिवाइज करते हैं तब भी हमें कुछ इंटरलिंकेज समझ आती है कि हाँ ये इस तरीके से ये थ्योरी यहाँ फिट बैठ रही है, ये स्टडी जो हुई थी इसमें ये वाली थ्योरी लग सकती है। तो उस तरीके से एक बार अगर खुद को आपको क्लियरली समझ आ रहा है, नहीं तो सर के साथ डिस्कस करके जस्ट ऐड इट, तो उस तरीके से इट विल हेल्प। वो भी एक तरीके का वैल्यू एडिशन है। तो अगेन समरी क्रक्स पूरी टॉक के बाद स्टिल वही रहेगा, नोट्स, रिवाइज, आंसर राइटिंग, रिपीट। Any questions? And then we'll sum up then we'll end the session. I have a question. Yes, You scored 300. yes. If your target this time is 325 or 340, what strategy you will change? Sir, to be honest, I'll not change much of the strategy because I feel कि वो थोड़ा उस दिन का है, जो उस दिन पे थोड़ी गलतियां हुई थी। जैसे पेपर 2 में लास्ट में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इशू हो गया था लास्ट क्वेश्चन में, तो वो अगर इम्प्रूव हो जाता तो 5-7 नंबर वहीं बढ़ जाते। और एक जो क्वेश्चन कल्चरल लैग वाला क्वेश्चन था, विलियम ऑगबर्न वाले पर्सपेक्टिव, मतलब बिकॉज मुझे वो नहीं आता था तो उसके बारे में नहीं लिखा था मैंने, जनरल कल्चरल लैग के ऊपर वैसे एक पेज लिख दिया था। तो वही थोड़ा बहुत इस तरीके से अगर इम्प्रूव होगा तो 10-12 मार्क्स तो बढ़ जाएंगे। बाकी कुछ चेंज नहीं करना, स्ट्रेटजी सेम है, नोट्स बने हुए हैं, रिवाइज, मतलब हाँ थोड़ा सा जो और करंट लिंक्स या जो भी नई स्टडीज आएंगी उनको इनकॉर्पोरेट करूंगा। बाकी फिर वही अगेन रिवाइज, नोट्स बने हुए हैं तो मेरे लिए वो मेक नोट्स नहीं अप्लीकेबल होगा, रिवाइज आंसर राइटिंग, रिवाइज आंसर राइटिंग, बस रिपीट। That's all. Yeah. But cultural lag is there in your book.
in search of ourselves. जैसे वो दिया है वो नोट्स में नहीं था. Nobody goes that seriously. Hmm? So he didn't have the time to read this book, but this is good for value addition. Anthropology, sociology, history, essay. I think Mrs. Gaurav is there. She is opting for sociology. So I think I should give this book to her. She married only recently, just before the prelims. Please. And they are actually on a honeymoon trip. On the way, it was Delhi Medway. So it's good. God bless you. दिखा दो. ठीक है. Anything else? No? I think it was too exhaustive. टेलीग्राम पूरा लिंक I think you need anything more than what has been told to you. Even some other things you may have to delete from your mind. You don't have to read too much to become a bigger IAS. You just have to be an IAS only. References limit only till you can write, you can express yourself. If you overload your content, problem will be how to condense it. Once you have made an answer, if you have to update, obviously you have to revise, you have to take time. But I wish that you revise your answers after your prelims. When you write prelims, after that, when you go through your content, वो you will मेजर laugh at इशू your आ रहा answers होगा. yourself. वो स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं. जी इट्स नॉट GAUR, इट्स GOUR AV गौरव. सो इसलिए नहीं मिल रहा होगा. सर नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या फिर टॉपिक वाइज जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया उस वे में बनाना है? आई स्टार्टेड विद मतलब जो पहले जो मैंने कहा था जो मेरा रजिस्टर था वो क्वेश्चन आंसर था, बट उसके से बाद जब मैंने बनाया दैट वाज मतलब वो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बट उसमें से जैसे टॉपिक बस लिख लिया, हेडिंग लिख ली. जो शॉर्ट नोट्स बने थे वो मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से दैट वाज द फॉर्मेट आई फॉलोड. मतलब वो फॉर्मेट उस तरीके से हेल्पफुल नहीं है कि हम वी कैन डायरेक्टली हमारे PVQ तैयार हो रहे हैं उस तरीके से, बट वो हमें थीम्स कवर करने में बेसिकली हेल्प करता है. वो जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है या जो PVQ हम लिखते हैं दैट हेल्प्स अस टू कवर ऑल द डायमेंशंस. तो उस तरीके से वो डायमेंशंस आप क्वेश्चन ना लिखो, मतलब सिंगल शीट ऑफ पेपर पे जस्ट राइट ऑल द डायमेंशंस एंड राइट द पॉइंट्स. सो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ओनली. मतलब ऊपर क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के मतलब जरूरी नहीं है, मतलब वो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ओनली कि वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द themes and dimensions in our मतलब be it for GS as well कि GS में भी what why how pros cons solutions recommendation ये सारे हमारे notes में होना चाहिए. This was my third attempt. Second means last year it was 230. What did you did for 70 marks? Plus 70. This I said ना, I covered every topic. I made notes. जो मेरे वो जो notes थे 1200 1000 4 रजिस्टर थे उसको 300 पन्ने पे लेके आया, कंसोलिडेट किया, वैल्यू एडिशन क्लियरली हाईलाइट करी, उसको 10-15 बार रिवाइज किया, आंसर राइटिंग करी. And before we met here, I asked him about, we had a conference in August last year in Bhubaneswar World Conference, and it was a bit too late to upload. So he said that he covered all that also. Updation is very good. वो जो लास्ट ईयर भी हुआ वो इस साल यू कैन ऐड इट ना, तो वो दैट इज लेटेस्ट ओनली. सो उस तरीके से उसमें से भी कुछ व्हाट इज रेलेवेंट यू कैन ऐड, बट वो उसको रिवाइज करोगे तभी वो ऐड हो पाएगा. डोंट अगेन वही डिस्क्लेमर भी है, डोंट ऐड टू मच. मतलब बेसिक्स तो आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज जस्ट 1/10 या 1 मतलब वो 15% 10% रोल प्ले करेगा वैल्यू एडिशन. जो बेसिक डिमांड एंड बेसिक जो है वो तो कंटेंट उतना ही रहेगा. वी कांट राइट द होल आंसर विद वैल्यू एडिशन, बट वो जस्ट वो तड़का है, वो जो ऊपर वो जो राई कड़ी पत्ते का जो तड़का रहता है वो वैल्यू एडिशन इज दैट तड़का बेसिकली जो दैट एनहांसेस द टेस्ट. सो दैट इज द रोल ऑफ वैल्यू एडिशन. Done?